and what is the certification process, and then we will see the question and answer, and then I said that we are having the other. Okay, so food industry, it is very important. Whatever innovations are happening in artificial intelligence, ye wo, language with Hindi and English is fine, Ajit ji? Yeah, sorry, it's fine. I can use Hindi and English both, right? Both. Yeah. So food is very important in this. Today we are having all our artificial intelligence available with us. हम लोग कोई भी काम कर सकते हैं. हमें टीवी देखना है तो हम कहीं से बैठ के देख रहे हैं. एक्चुअली अब टीवी भी नहीं चाहिए, हम अपने फोन में टीवी देख रहे हैं. हमें बैंकिंग करनी है, हम अपने फोन से कर रहे हैं. एवरीथिंग इज पॉसिबल. You can make anything, but as long as human population is there, you need food to survive. Okay, so food is very important, and as a nutrition physical form we need, it is also a form of social life. अभी हमारे घर में कोई बर्थडे होता है, कोई शादी होती है, कोई भी हैप्पी मोमेंट या सैड मोमेंट, जो भी सोशलाइज करने का तरीका है, फूड इज वन इंपॉर्टेंट थिंग. कि चलो यार आज बाहर खाना खा के आते हैं. किसी को कुछ भी हो जाता है, किसी ने कुछ अच्छा अचीव कर लिया, यार ट्रीट देना है. So food is something which is very social thing also, so we need to be, and it is cultural and ethical thing also. अगर आप जो है साउथ इंडिया जाते हो तो दे विल से ओ दिस इज दिस फूड. आप जो है बाहर का इटालियन फूड, थाई फूड, दिस फूड, सो आप समझ सकते हो कि दिस इज द वे व्हेन पीपल आर इनोवेटिंग, एंड फूड इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर लाइफ. And since food is very important and human population is there, so food is directly relation with the human population. Important thing is everybody wants food. Then next is everybody wants safe food. And third thing, everybody wants quality food. Okay, tasty food. So quality, taste, ये सब जो है बाद में आता है. पहले तो सबको खाना चाहिए, सबको अच्छा मतलब सेफ खाना चाहिए कि जो भी खा रहे हैं सेफ है. And then everybody wants good, tasty and all those. So as long as this human population is there on the earth, we are definitely going to have food business. There are some numbers. These numbers are little old, but food industry is a huge industry. अगर आपने देखा होगा कोविड-19 का सिचुएशन जब पिछले 8-9 महीने से है, तो आप देखिए पढ़ाई करने के तरीके हमारे बदल गए हैं, क्लास लेने के तरीके बदल गए हैं. पीपल आर डूइंग दिस वर्चुअल क्लासेस एंड ऑल दोस थिंग्स, बट खाना खाने का तरीका नहीं बदला है. खाना अभी भी वही हो रहा है कि खाना लाना है, रॉ मटेरियल लाना है, बनाना है और खाना है. पहले जो बाहर खाना खाने जाते थे शायद उसमें बदलाव ला दिया है, बट फूड इनटेक हैज नॉट बीन हैम्पर्ड, नॉट हैव बीन चेंज्ड. ओके, सो ये है, बट मे बी वी आर टेकिंग मोर सेफर फूड, मोर food which is giving me means our body more resistance towards this, so that is the thing. But food intake has not been reduced. We might have reduced socialization, we might have reduced anything else, but we have social distancing रखना है, वो करते हुए बाकी और सब कर दिए, but food नहीं बदले. So that is the way you can understand how important food is. And when food is so important and so much necessary for our life, it is also important to be safe and quality. Okay, we want safe and safety and quality in food, and that's what we are going to discuss. बहुत सारे लोग अभी भी ज्वाइन कर रहे हैं अजीत जी. हाँ सर, मैं एडमिट कर रहा हूँ. अच्छा ठीक है. क्यों जो है ये नहीं हो रहा है, बीच बीच में ये शिफ्ट नहीं होता है, मतलब स्लाइड आगे नहीं जा रही. आपके वहां चल रहा है सर? नेट तो हमारा चालू है. नहीं, स्लाइड में वहां पे नहीं, हमारे यहाँ पे भी नहीं जा रही. नहीं, अच्छा, फिर वहीं पे प्रॉब्लम है आप सिस्टम का. एक मिनट के लिए शेयर हटा करके फिर से कर दूं क्या? हाँ, यस. ठीक है, तो अभी आई थिंक इट इज बैक नाउ ना? यस. So अगर आप देखेंगे, so like I said earlier, food industry and growth of population, they are having direct relations. Okay, direct relation. And
अगर आप देखेंगे तो पिरामिड में नीचे से ऊपर जाते हैं हम लोग। हाउ वी आर गोइंग सी फूड एज ए बेसिक रिक्वायरमेंट, एज ए बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर लिविंग द लाइफ, टू कीप अस लिविंग, सो दैट इज द थिंग। एंड अगर आप देखोगे तो अंडर डेवलप्ड सोसाइटीज से, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज से, अंडर डेवलप्ड एरिया से, अंडर डेवलप्ड जियोग्राफी से इंडस्ट्रियलाइज्ड या जियो एंड जो भी मतलब डेवलप्ड सोसाइटीज की तरफ जाते हैं, तो basic requirement is for nutrition, then we go for safety, then we go for quality, and then we do research and development on that. एंड अगर आप देखेंगे तो ये है कंट्री जिनकी पॉपुलेशन है चाइना, इंडिया, यूनाइटेड स्टेट्स, इंडोनेशिया। तो अगर आप देखोगे तो पॉपुलेशन दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है, तो डेफिनेटली फूड कंजम्पशन, फूड प्रोडक्शन, फूड प्रोसेसिंग, एवरीथिंग हैज टू इम्प्रूव। ओके, अगर आप देखेंगे जो एक फूड चेन होती है, हाउ दिस स्टार्ट्स फ्रॉम द फार्म। ओके, तो फार्मिंग होता है, फार्म टू फोर्क मतलब जो फार्म हो रहा है, तो फार्मिंग इन केस ऑफ एग्रीकल्चर इट कैन बी एग्रीकल्चर, इट कैन बी एक्वाकल्चर इन केस ऑफ सी फूड एंड फिश और श्रिम्प और समथिंग लाइक दैट। एंड वहां पे हम लोग क्या क्या करते हैं, सॉइल टेस्टिंग करना होता है, मैपिंग करना है, एरिया को मैप करना है, सीड प्रोडक्शन करना है, सीड को टेस्ट करना है। ये सब चीजें हमें सेफ्टी दिखा रहे हैं, क्वालिटी दिखा रहे हैं। क्रॉप को प्रोक्योरमेंट करना है, क्रॉप को ग्रो करना है, क्रॉप को ग्रेड करना है, क्रॉप क्वालिटी के हिसाब से हमें क्रॉप को सेग्रीगेट करना है। ठीक है, ये हमारे इनलैंड कंट्रोल होते हैं। फिर जब भी हमारी प्रोसेस एक्वाकल्चर की चलती रहती है, जितने भी दिन का हमारा जैसे डीओसी बोलते हैं आप, डेज ऑफ कल्टीवेशन, डेज ऑफ कल्चर, अगर आप जनरल बोल दीजिए एग्रीकल्चर और एनिमल रियरिंग, सो जो भी है डेज ऑफ उनका जो कल्चर है दैट changes, and during that period of time we are doing lot of inspection for weight, quality for the people, and lot of things are happening. Okay, whatever way it is happening we are doing. Then in between you are doing stock monitoring की हमारे पास कितना नंबर्स थे पहले, मान लीजिए हमने 10,000 सीड्स डाले थे तो अभी कितने रह गए हैं, उससे डिपेंड करता है मॉर्टेलिटी क्या रही है या हमारे सब पैरामीटर्स कैसे जा रहे हैं। तो दैट शोज हाउ गुड और हाउ बैड इट इज। सिमिलरली अगर पोल्ट्री है तो हाउ मेनी चिक्स वी हैव पुट एंड हाउ मेनी आर देयर नाउ। अगर एनिमल है तो उसके बारे में भी ये सारा रहता है कि उनका ग्रोथ कितना हो गया, फूड कन्वर्जन रेशियो क्या है, फीड कन्वर्जन रेशियो क्या है, ये सारी चीजें हम लोग करते रहते हैं। उनका भी स्टॉक इंस्पेक्शन होता है, स्पॉट इंस्पेक्शन होता है, ऑडिट और रिपोर्टिंग भी करते रहते हैं। एंड ये सारी चीजें हैं। हमें फार्म लेवल में भी वी हैव टू डू क्रॉप सेफ्टी, वेदर इट इज एक्वाकल्चर क्रॉप, वेदर इट इज एग्रीकल्चर और लाइव स्टॉक और व्हाटएवर, वी हैव टू डू इंस्पेक्शन, ट्रेसेबिलिटी एंड टेस्टिंग। अगर आप देखोगे तो ट्रेसेबिलिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज हो गई है कि कहाँ से प्रोडक्ट आ रहा है, कहाँ पे जा रहा है, कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस है, आगे हम लोग देखेंगे जहाँ पे है। और इंपॉर्टेंट चीज क्या है, दिस शुड बी फिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, एंड इन ह्यूमन कंजम्पशन, फिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन में भी कंसिडरिंग द लोकल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, स्टैट्यूटरी एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, जिसको इन जनरल हम लीगल रिक्वायरमेंट। फॉर एग्जाम्पल इंडिया में FSSAI है, यूरोपियन यूनियन में EU रेगुलेशंस है, USA में USFDA रेगुलेशंस है, चाइना में चाइनीज रेगुलेशंस है। तो बहुत सारी जगहों पे हमें ये देखना रहता है। नॉन GMO है, ऑर्गेनिक फूड है, दिस फूड है, दैट फूड है, ये सारा चीज करते रहते हैं लोग, जिसको हम लोग बोलते हैं कि आइडेंटिटी प्रिजर्व या प्रोवेनेंस फूड भी बोलते हैं। तो इन सब चीजों के ऊपर रहता है बहुत सारा। फिर एडवाइजरी सर्विसेज रहती हैं, यहाँ पे ट्रेनिंग देना है, रिस्क असेसमेंट करना है, कंसल्टिंग करना है। तो ये सारी एक्टिविटीज है फार्म पे होती। इसी में शायद हो सकता है फार्म से एसोसिएटेड इंडस्ट्रीज हो, जैसे हैचरी है, नर्सरी है, फीड मैन्युफैक्चरिंग है। ये सारी एक्टिविटीज जो भी है सब चीज इसीलिए होती है कि फॉर द क्रॉप सेफ्टी। ओके, so that's the important. Now as soon as we are moving from the farm, we are going towards the fork. Now somewhere we are harvesting the crop and directly eating, for example fruits. Now fruits are being taken, for example grapes are being plucked from the farm and it is being brought to the table immediately. हम लोग डायरेक्टली खा सकते हैं। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के बारे में बहुत बार ऐसा है, कुछ चीजें जैसे फ्रूट्स हैं, सलाड्स हैं, ये सब हम लोग को जो है वी आर ईटिंग रॉ। ओके, सो इसके लिए स्टेज ऑफ प्रोसेसिंग बहुत सारा है। तो अगर आपने
क्रॉप को, फ्रूट को निकाल करके और पैक कर दिया, ग्रेडिंग करके और पैक कर दिया, यू हैव नॉट मेड एनी चेंजेस आल्सो, दैट इज आल्सो कॉल्ड एज ए processing. That's a type of processing where we call it size grading and packing. Okay, आपने 50 किलो के बैग में से निकाल करके आधा आधा किलो के बैग बना दिए कोई भी चीज, that's also called as processing. That's called repacking or pack size packing. Okay, आपने उस ग्रेप्स को कन्वर्ट कर दिया जूस में, that's called processing. आपने उस ग्रेप को यूज किया एंड यू हैव कन्वर्टेड इनटू फर्मेंटेशन एंड दिस दैट नल कन्वर्टेड इनटू लिकर. सो मे बी शायद वहां पे 2-3 स्टेजेस आते हैं. सो देयर इज प्रोसेसिंग, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, जो भी है, जितने भी हो सकते हैं अलग अलग. तो ये सारे जो भी हम इसको कह रहे हैं, इट इज बीइंग कॉल्ड एज प्रोसेसिंग. समवेयर वी आर चेंजिंग द फॉर्म ऑफ द फूड. For example, we are taking spices and converting that spices into oleoresins. We are converting into flavors. We are converting all those things into different things. That's why it is coming. कहीं कहीं पर जो है प्रोसेसिंग में ये होता है कि we are not changing the physical form of the food, but manufacturing जब बोलते हैं तो we are changing the physical form of the food. तो वहां पर जो है आप देखेंगे बहुत सारे चीजों में आप फिजिकल फॉर्म चेंज कर देते हैं. You are taking wheat flour and converting into roti, bread, or biscuit, or whatever it is. So these things are being changed. So processing, manufacturing, production, जो भी आता है, there is a very slight difference, but everything is whenever these things are there, you consider that whatever relevant is there, it is being discussed. Okay, and अगर आप देखेंगे तो प्रोसेसिंग में भी BRC फूड, IFS, FSSC 22000, SQF, GMP, ये बड़े अलग अलग हैं जो स्टैंडर्ड लगते हैं. उसके अलावा मैनेजमेंट स्टैंडर्ड है, HACCP, ISO 9000, 14000, 22000, OSAS 18000 था, अभी उसका नाम बदल करके नया हो गया है ISO 45000. देन सोशल अकाउंटेबिलिटी अगर आप देखेंगे तो हाउ पीपल आर बीइंग यूज्ड, जो वर्कर्स काम कर रहे हैं, पीपल काम कर रहे हैं, एसोसिएट्स काम कर रहे हैं, हाउ इज देयर सोशल अकाउंटेबिलिटी, कैसे उनका है, आपने चाइल्ड लेबर तो नहीं किया है, यू आर पेइंग देम प्रॉपर्ली, दिस दैट आल्सो ऑल दोस थिंग्स. वहां पे बहुत सारे एथिकल ट्रेड इनिशिएटिव आ जाते हैं, आर यू पेइंग इट प्रॉपर्ली, आर यू नॉट पेइंग इट, ऑल दोस थिंग्स कमिंग. ओके, ये सारे स्टैंडर्ड जो है हर जगह पे प्रोसेसिंग के इसमें आ सकते हैं. होलसेल बहुत सारे लोग करते हैं, होलसेल के लिए ओन ब्रांड सर्टिफिकेशन कर सकते हैं. बट अगर मान लीजिए होलसेल में भी आपने, जैसे मैंने बताया, इफ यू आर टेकिंग बल्क क्वांटिटी एंड कन्वर्टिंग इनटू समथिंग एल्स विदाउट चेंजिंग द फॉर्म, आल्सो दैट कम्स एज ए प्रोसेसिंग. सो इवन व्हेन द प्रोसेसिंग इज हैपनिंग, मैन्युफैक्चरिंग इज हैपनिंग, ऑल दी स्टैंडर्ड्स विल कम देयर. Retail, their own brand is there. For example, if you are having Walmart, their own brand is there. Costco करके है, उनका अपना ब्रांड है. Metro है, उनका अपना ब्रांड है. So many people are having their own brand. But again, if they are making any changes, all these standards are applicable. अगर ये सारे स्टेजेस में, जहां पे भी जो भी स्टेजेस हैं, everywhere inspection, traceability and testing is very important. कुछ जो है वो स्टैंडर्ड है, जैसे वॉलंटरी स्टैंडर्ड है. जैसे क्रॉप में कुछ लोग बोलते हैं ऑर्गेनिक स्पाइसेस हैं, कुछ लोग बोलते नहीं. आजकल नया कॉन्सेप्ट चला हुआ है ऑर्गेनिक एक्वाकल्चर. इनफैक्ट आई एम वर्किंग विद अ कंपनी इन बहरीन हु आर इनटू ऑर्गेनिक एक्वाकल्चर. सो हम लोग उनको अपना ऑर्गेनिक एक्वाकल्चर सर्टिफिकेशन का सपोर्ट दे रहे हैं. कुछ लोग GMO, जैसे लोग बोलते हैं कि मेरा प्रोडक्ट जो है जेनेटिकली मॉडिफाइड नहीं है, तो कैसे है वो, तो जब वो क्लेम करते हैं तो किस बेस पे क्लेम कर रहे हैं, तो उसका भी एक सर्टिफिकेशन होता है, उसका भी टेस्टिंग होता है उसके बेस पे. कुछ लोग बोलते हैं हलाल. अभी हलाल जो है, बहुत सारे लोग बोलते हैं केवल ये हाउ पीपल आर स्लॉटरिंग द एनिमल और समथिंग लाइक दैट इज ओनली कॉल्ड हलाल. बट देयर आर रिक्वायरमेंट, बिकॉज हलाल में फूड शुड नॉट हैव अल्कोहल, food should not have pork नहीं होना चाहिए. All those kind of things are happening. Along with if any religious things are there, that also there. तो ये सारी चीजें हैं जहां पर की ये है. Quality, safety everywhere. Wherever we are doing quality and safety everywhere it is possible. And हर stages में training, risk management and consulting किया जा सकता है. So अगर आपने देखा होगा, we started our journey from farm and we are ending our journey to the fork, means to the table. Fork means
जो हमारे प्लेट में आ जाए बिफोर कंजम्पशन टू द कंज्यूमर और टिल इट इज गेटिंग कंज्यूम. सो फ्रॉम फार्मिंग टू द फूड थ्रू आउट द सप्लाई चेन. अब ये सप्लाई चेन बहुत कॉम्प्लेक्स हो सकती है. एवरीवेयर वी हैव टू मेंटेन द क्वालिटी, सेफ्टी, एंड इफ एनी identity preserved things are there, that also we have ensured. So how it is going to be value proposition, total quality assurance value proposition? So that is the way how we are supporting. If you see in the center, in-depth total quality assurance, assurance testing, inspection and certification. If it is not in-depth, anything else also is there. So this is the way total quality assurance is going to happen. So there has to be research and development. So even when people are doing research and development, they have to take care. If somebody is coming out with a new chocolate, they have to ensure that it is not going to harm the children. They have to ensure that it does not have certain banned substances. It does not have anything. So which is going to have an impact on certain population. So they have to see there when they are doing the research and development. When they are doing raw material sourcing, they also have to see the raw material is being purchased properly, whether it is coming from the farm, whether it is coming from the mandi, whether it is coming from the market, APMC market and all those things, mandi and all, you know, all आजकल तो बहुत सारा चल ही रहा है, धरने वरने भी चल रहे हैं. So from wherever it is coming, it needs to be safe. So raw material sourcing में भी ये सारी चीजें हो सकती हैं. Component supplier, आप जो है पिज्जा खाते हो, if you go to Domino's, you eat pizza. Now you see that so many things are there in pizza. Pizza, you are having the bread crust, but you are having some kind of meat into that, some kind of vegetable into that, some kind of oil, fat, ghee, all those things, some kind of spices, some kind of toppings. So if you see, there may be 10 or 20 different things. So whatever components, and they are the food components, but there are some plastic components. So there are some plastic sheet on that. There are some paper sheet on that. Okay, because it is being used as a packaging material. There are certain plastic forks, certain certain spoons and fork and all. So whatever things are there, they also need to be safe. They cannot be made from the something which is inferior. Then we are going into manufacturing. I already discussed how the manufacturing, all those things, so I'm not going into detail now because I said primary, secondary, just only processing, manufacturing, production, whatever they call, but overall. Then food needs to be transported also. Something is being, say for example, in case of fish industry, seafood is available in the seas only, okay, high seas only. So for example, India में कहाँ पे है? So whatever peninsula we are having, it is available there. गुजरात से लेकर के बंगाल तक अवेलेबल है, पूरा कोस्ट लाइन में अवेलेबल. But how it is going to, say in your area in Punjab or in nearby you, if you want to eat say mackerel fish, it needs to be transported from here to there. And during transport also they need to be careful. For example, what they have to be careful, that product is not getting deteriorated, temperature is not being compromised, their physical form is not compromised, their shelf life is being maintained, their physical form, there should not be any damage, all those things. अभी आप देखिए घर में हमारे बिस्किट आता है, कभी कभार टूटा रहता है अंदर, तो बहुत मुश्किल है. अगर आप एक सोप खरीदिए, साबुन खरीदिए, अगर वो साबुन का पहला काम होता है जैसे ही खरीद के लाया आपने उसका रैपर फाड़ के फेंक देते हैं, क्योंकि हम रैपर के साथ में तो यूज नहीं कर सकते. लेकिन अगर फटा हुआ रैपर के साथ में दुकान में है या रिटेल शॉप में है, विल यू बाय? नो. सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट ट्रांसपोर्टेशन, storage also plays big role. Distribution and retail channel. So whenever it is going to be stored, distributed and retail, it needs to be quality, safety and everything needs to be maintained. And not only that, traceability also needs to be maintained. That is also very very important. Then consumer management. So consumer is like institutional kind of thing. Factories वगैरह जो रहते हैं ये consumer, ये हो गए customer. But when it comes to us individual, we are consumers. So how we are giving this safe quality food to our consumer, that also. So अगर आप देखोगे तो entire supply chain, entire population, entire food supply chain needs to be taken care for the total quality assurance. And when we are saying total quality assurance, so this is assurance, testing, inspection, certification. So that everything needs to be considered. And
देयर हैज टू बी सिस्टमैटिक अप्रोच फॉर क्वालिटी एंड सेफ्टी. अगर आप देखेंगे व्हाट इज द कंज्यूमर, एज ए कंज्यूमर व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग, वी एक्सपेक्ट वाइड चॉइस ऑफ फूड प्रोडक्ट. हमें अगर हम जो है वेजिटेरियन है तो दाल चावल ही रोज नहीं खा सकते यार, कुछ और भी चाहिए. अगर हम नॉन वेजिटेरियन हैं तो हमें फिश ही नहीं चाहिए, मीट भी चाहिए, मीट ही नहीं चाहिए, हमें चिकन भी चाहिए. बहुत सारे अलग अलग चॉइसेस हैं एंड डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में होने चाहिए, डिफरेंट डिफरेंट साइज में होने चाहिए, डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट में होने चाहिए. ओके, समथिंग. सो दैट इज द वाइड चॉइस फॉर द फूड प्रोडक्ट. देन देयर इज अ ह्यूज वॉल्यूम ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट्स एंड टेस्टिंग मार्क्स. तो हमें ये है कि कौन सा प्रोडक्ट मैं खरीदूं. अभी बिस्किट जो है वो पार्ले का भी अवेलेबल है, ब्रिटानिया का भी अवेलेबल है, सनफीस्ट का भी अवेलेबल है, तो कौन सा ज्यादा अच्छा है. तो ये चीज है किस तरीके से मैं समझूं. राइजिंग हेल्थ ट्रेंड थ्रू ऑल पॉपुलेशन. अगर आप देखोगे तो अगर चार तरीके के लोग होते हैं. देयर आर यंग पॉपुलेशन, सो वेरी यंग, सो मान लीजिए कि 10 साल से नीचे जो बच्चे हैं. तो अगर आप देखेंगे जस्ट पैदा हुआ बच्चा, उसका फूड का इंटेक रिक्वायरमेंट अलग होता है. लिक्विड फूड ले सकता है, मिल्क ले सकता है, उनकी बॉडी की डाइजेस्टिव चीजें अलग अलग, डाइजेस्टिव सिस्टम अलग होता है, तो क्या ले सकते हैं क्या नहीं ले सकते हैं. सो यंग, व्हेन वी आर सेइंग यंग देन इट बिकम्स ओल्ड. ओल्ड की रिक्वायरमेंट अलग होती है. मान लीजिए कोई 60 या 65 ईयर्स के बाद है तो उनके लिए अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है. कुछ पॉपुलेशन ऐसी है जिनको हम बोलते हैं इम्यूनो सेंसिटिव. मान लीजिए किसी को डायबिटीज है तो वो कोई स्पेशल टाइप का फूड नहीं ले सकते हैं, या कोई फूड में रिस्ट्रिक्शंस है, कोई आदमी एल्बिनो है, कोई आदमी कुछ है, मतलब जिसको भी किसी भी तरीके की प्रॉब्लम्स है तो उनको इन जनरल इम्यूनो सेंसिटिव कहा जाता है. तो बट फूड तो उनको भी चाहिए, तो ये भी है. तीसरी एक इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है, पॉपुलेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना यंग है ना ओल्ड है ना इम्यूनो सेंसिटिव है, बट दे आर द लेडीज, गर्ल्स, जो वीमेन है वो प्रेग्नेंट जब हो जाती है तो वो स्पेशल पॉपुलेशन हो जाती है. उनके लिए भी बड़ा अलग अलग तरीके का फूड दिया जाता है, बिकॉज their health, the women, the pregnant women health, and the SIP means the young one, whatever is there inside them, that also needs to be safe, and they are also getting the right food. So ये आप देखिए कि ये कंज्यूमर्स की हमारी एक्सपेक्टेशंस है. और इतनी सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, टीवी में रोज हम देख रहे हैं, न्यूज़पेपर में रोज देख रहे हैं, इंस्टीट्यूट्स में देख रहे हैं, और मॉल में जा रहे हैं, एक ही जगह पे दुनिया भर के हैं. कभी कभार तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं यार क्या खाना है. बच्चे लोग बोलते हैं ये खाना है, हमें ये खाना है, हमें. सो ह्यूज एंड ह्यूज इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल नाउ. अभी फोन हो जाने के कारण से हमारे पास दुनिया भर के और ऑप्शन हैं जो हम लोग देख पाते हैं कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना. सो व्हेन वी आर हैविंग ह्यूज चॉइसेस, there are a lot of things, so we have to also see that ki we are, consumers are overloaded and they should not be having negative of that. Everything should be positive. See, like I said, consumers in EU, Japan, they don't accept GMO, so we have to see हमें क्या खाना है. हमारे इंडिया में हम लोग, कुछ लोग होते हैं हमें हलाल फूड नहीं खाना है, हमें नॉन वेज नहीं खाना है, कुछ लोग पोर्क नहीं खाते हैं, जो भी है जैसी भी चीजें. कुछ लोग व्रत रहते हैं, मतलब उनका उपवास होता है तो वो फूड ग्रेन्स नहीं खाते हैं, बट दे कैन ईट समथिंग एल्स, मिल्क. सो ये सारी अपनी अपनी रिजर्वेशंस हैं जिसके हिसाब से खाते रहते हैं. तो वो चीजें वी हैव टू डू. दिस इज द एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द क्लाइंट. कंज्यूमर्स डू नॉट एक्सेप्ट फूड स्कैंडल्स एंड क्राइसिस, वांट टू हैव सेफ फूड. एवरीबडी वांट सेफ फूड, है ना. तो बहुत सारे स्कैंडल्स हो रहे हैं. कहीं पे हॉर्स मीट का स्कैंडल हो गया, मीट के नाम पे हॉर्स मीट दे दिया गया, बीफ के नाम पे या मटन के नाम पे, है ना. कहीं पे कोई चीज और दे दी जाती है, और फूड स्कैंडल बहुत होता है ना. तो ये बहुत बहुत ध्यान रखना है. कभी कभार फ्रेश की बजाय फ्रोजन दे देते हैं, कभी कभार. तो ये सारी चीजें हैं, ये ऑल दोस कम्स इनटू स्कैंडल है. कभी कभार सब स्टैंडर्ड चीजें दे देते हैं. तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, व्हाट कंज्यूमर वांट्स, द सेफ एंड क्वालिटी. Asking for neutral monitoring and control mechanism, and that's why it is ATIC, so assurance, testing, inspection and certification comes in picture to provide the right kind of food whatever customer or consumer wants. So consumer does require more information on food products and the supply chain, कि कहाँ से आया है, कैसे आया है, क्या. So what is food safety? अगर आप देखेंगे, a food article which when consumed as per its intended use does not lead to any food safety risk, any health risk. Any food which is safe does not lead to foodborne illness. To consume it safe. Okay, so that is the safe food.
And what is food safety? It is a discipline and a concept which encompasses and deals with various on the farming, processing, transportation. So any supply chain, storage and handling, and aims at making safe food. Okay, so that's the food safety. Food safety hazard, you know that any product, any food, whatever we are consuming, this should not be detrimental to the health. Okay, that's what we have understood. And we know it is physical, chemical, biological, and situations or property and all those things which does not make the food unsafe to consume. And physical, metal, glass, wood, biological, bacteria, viruses, fungus. Now, you know, all COVID and all is a huge problem. You can understand all these coming in biological. Chemical, so melamine in milk, pesticide residue in fish even, heavy antibiotic drugs in the fish, chloramphenicol, nitrofuran, all those things. And heavy metals, all those, mercury, chromium, copper, all these things are having arsenic, all these things are having health issues. So that's why it is very, very important. So, Aditi, मैं इसको थोड़ा सा बहुत कम रखा हूँ because people, the students might have gone through hazards and all somewhere, right? Yes, so yes, people yes, will be yes, having yes, the knowledge on hazards, so I am not going into detail. Okay. Okay, sir. Okay, no issue, sir. These are the type of hazards. So microbiological, so all like we said, microbes. It can be animal origin, plant origin, can come from anywhere. Okay. Physical contaminants. So आप जान रहे हो any kind of physical contaminant. One important physical contaminant is our hair. खाने में बहुत सारा hair मिलता है. Chemical contaminant. Chemical already हम लोग जान चुके हैं. केमिकल हो सकता है कि फैक्ट्री वगैरह में मशीन वगैरह चलते रहते हैं तो इवन ऑयल ग्रीस भी हो सकता है. तो एनी काइंड ऑफ केमिकल व्हाट एवर इज नॉट डिजायर्ड. फ्रॉड, आजकल बहुत फ्रॉड करते हैं लोग. जो है आपको फ्रेश के नाम पे फ्रोजन खिला देते हैं. जैसे मैंने बोला मीट के नाम पे हॉर्स मीट खिला दिया गया था. ऑल दोस काइंड ऑफ थिंग्स हैपन. मलिशियस कंटामिनेशन. व्हाट इज मलिशियस कंटामिनेशन? जानबूझ के कोई चीज कर दिया है. अब आप लोगों ने सुना होगा व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स होते थे पहले 2-4 साल पहले कि किसी फैक्ट्री जो जूस बना रहा है उस जूस में किसी अनसेटिस्फाइड एम्प्लॉय ने और somebody who is not happy वो जो है अपना ब्लड का कुछ डाल दिया है उसमें. सो डोंट ड्रिंक. सो दिस इज वन, आई डोंट नो हाउ ट्रू और हाउ फॉल्स, बट दिस इज कॉल्ड मलिशियस कंटामिनेशन. जानबूझ करके डाल दिया उसके अंदर कोई चीज. आपने सुना होगा इतने लोग जहरीली शराब पी करके मर गए. इतने लोग खाना खाने, शादी में खाना खाने गए थे और खाना खा के इतने लोग बीमार पड़ गए, इतने लोगों को डिसेंट्री हो गई, इतने लोगों को प्रॉब्लम हो. तो ये सारी चीजें कहलाती हैं मलिशियस कंटामिनेशन. अलर्जन, आप जानते होंगे अलर्जन है. बहुत सारे लोगों को बोलते हैं नहीं मुझे डस्ट एलर्जी है. कुछ लोग बोलते हैं नहीं मुझे एलर्जी है. फॉर एग्जाम्पल, आई गिव माई एग्जाम्पल. आई हैव एलर्जी विद मोलस्क. मैं एक बार वियतनाम गया ऑडिट करने. तो उन्होंने मुझे पूछा, मैं पैकेजिंग इंडस्ट्री की ऑडिट करने गया था, तो उन्होंने मुझे पूछा कि आप क्या खाएंगे. तो मैंने बोला यार मैं सी फूड खा सकता हूँ, क्योंकि वहां पे वेजिटेरियन मिलना मुश्किल था. तो मैं सी फूड के नाम पे सोचा था फिश खिलाएंगे, श्रिम्प खिलाएंगे, बट दे गेव मी ऑल काइंड्स ऑफ बाइवल्स, मसल्स, मोलस्क, क्लैम, ये सब खाया. और मैं अगले दिन जब घर पे आया तो 5-7 घंटे बाद इचिंग हो रहा था बहुत. मैं घर पे आया तो वाइफ ने बोला बहुत सारा चकत्ता पड़ा हुआ है. तो मुझे ध्यान आया, उस समय मुझे ध्यान आया कि आई हैव एक्चुअली हैव एलर्जन, मींस आई एम एलर्जी टू दैट एंड दैट्स व्हाई दिस हैज हैपेंड. सो अगर आप देखोगे यूरोपियन यूनियन हैज डिक्लेयर्ड 14 डिफरेंट एलर्जेंस. सो मिल्क एंड देयर प्रोडक्ट्स आर एलर्जन, दे आर डिक्लेयर्ड एज एलर्जन. ग्लूटेन, so gluten containing grains they are allergenic. तो गेहूं, आटा, चावल, ये सब में है. नट्स, एनी नट्स, पीनट, कैश्यू नट्स, पिस्ताचियो, आलमंड, ये सारे जो है ये सब इसमें आते हैं. मस्टर्ड ऑयल, सेलरी लीव्स, फिश, क्रस्टेशियन, मोलस्क, ये सब जो है. और भी बहुत सारे, सल्फर डाइऑक्साइड करके एक है. अगर ये सारा चीज आप देखोगे ना, सो दे आर कमिंग अंडर दिस थिंग. एग भी आता है ये. बट आप देखिए हमारा दिन का शुरुआत मिल्क से होता है, हमारा दिन का शुरुआत ग्लूटेन से होता है. हमारा ये सारी चीजें, मतलब हम अच्छा फूड खाते हैं तो भी जो है ये है.
So it may not be allergic to everybody, but it is allergic to some people. So allergen also we have to consider. Earlier it was not considered as risk, but now it is being considered as risk. And आप देखिए हजार्ड जो है वो एनिमल ओरिजिन के होते हैं. हम आज खाना खाते हैं, इट इज सो कॉम्प्लेक्स. लाइक आई सेड पिज्जा, इफ यू आर ईटिंग पिज्जा यू आर ईटिंग प्लांट ओरिजिन एंड एनिमल ओरिजिन बोथ इन वन थिंग. कुछ चिकन पिज्जा खा रहे हो, कुछ फिश पिज्जा खा रहे हो, कुछ टॉपिंग्स इसकी है. सो यू आर ईटिंग everything. So all kinds of confusions are there. So here there could be genetically modified food also. Okay, antibiotic drug residue हो सकते हैं, ग्रोथ बूस्टर भी हो सकते हैं. पोल्ट्री आपके जो साथी होंगे जो वेटनरी वगैरह में हैं, उनसे आप कहोगे तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज होता है कि लोग फीड के साथ में ग्रोथ बूस्टर दे देते हैं, जो कि शायद ह्यूमन हेल्थ के लिए प्रॉब्लम. एंड अल्टीमेटली फ्रॉम द चिकन एंड फ्रॉम अदर थिंग्स इट कम्स टू अस. आपने देखा होगा अगर आप कुछ लोग मिल्किंग करते हैं, बुफेलो और काऊ को जो कमर्शियली मिल्क करते हैं, तो उसको इंजेक्शन देकर के मिल्क करते हैं. सो दे आर सर्टेन स्टिमुलेंट्स और उनको क्या बोलते हैं आप, नाम मुझे नहीं आ रहा है, समझ में आए, स्टेरॉइड्स और ये सब चीजें बोलते हैं, है ना. यस यस यस. हाँ, तो वो चीज ध्यान रखना है. माइक्रोब्स हैं जो कि हमें कुछ प्रोड्यूस कर सकते हैं, जैसे डायक्सिन्स प्रोड्यूस कर सकते हैं, माइकोटॉक्सिन्स प्रोड्यूस कर सकते हैं. सो एनी दिस थिंग. सो एनिमल ओरिजिन में क्या है, पोल्ट्री है, बोवाइन है, मीट है, सी फूड है, पोर्क है. तो ये है सारे चीज. सो वी नीड टू बी केयरफुल व्हेन वी आर ईटिंग व्हाट काइंड ऑफ. सो एवरीवेयर सेफ्टी इज रिक्वायर्ड. एंड अगर आप देखोगे तो जब ये प्रोडक्ट बनाए जा रहे हैं तो व्हाट आर द प्रोसेस बाय प्रोडक्ट. फॉर एग्जांपल इफ पोल्ट्री समबडी इज डूइंग, तो उसका फेदर निकाल देना है, स्किन निकाल देना है, बहुत सारा है ना. फिश प्रोसेसिंग आप कर रहे हो तो उसका स्किन निकालना है, उसका हड्डी तो नहीं बोलते हैं, बट जो भी उसके कांटे वगैरह है निकाल देने हैं, अदरवाइज इज गोइंग टू हैव एन इंपैक्ट ऑन. ओके, सो सरफेस से लीच हो सकता है, सैनिटाइजर से लीच, जो क्लीनिंग एजेंट यूज करे जा रहे हैं उससे कुछ चीजें आ सकती हैं. ओके, कंटामिनेशन स्टोरेज एंड हैंडलिंग के समय में हो सकता है इफ इट इज नॉट बीइंग डन. पैकेजिंग मटेरियल जो यूज हो रहा है उससे हो सकता है, क्योंकि पैकेजिंग इज आल्सो नॉट सेफ. कभी कभार तो हम समोसा वगैरह खाते हैं तो हमें पेपर के इस पे दे दिया जाता है. आप समझो कि पेपर का जो इंक है दैट कैन कम टू द समोसा और द फूड व्हाटएवर वी आर गोइंग टू ईट. जो भी प्रिजर्वेशन है, अगर प्रिजर्वेटिव जो यूज हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल मोनोसोडियम ग्लूटामेट MSG, इट इज नॉट अलाउड इन इंडियन सिनेरियो. बहुत सारे ऐसे प्रिजर्वेटिव्स हैं जो नहीं अलाउड है, बैंड है या है, हमें वो देखना पड़ता है. सो वी नीड टू सी दैट कि आवर फूड इज सेफ फ्रॉम ऑल दोस थिंग्स. सो दिस इज अबाउट एनिमल ओरिजिन. दिस इज अबाउट फ्रूट मींस प्लांट ओरिजिन. अगर आप देखोगे एग्रीकल्चर रेजिड्यू, इंसेक्टिसाइड, हर्बिसाइड, पेस्टिसाइड, इन्वायरमेंटल कंटामिनेंट्स, बाहर से कुछ आ जा रहे हैं. इन्वायरमेंटल कंटामिनेंट्स कैन बी pollutants from the vehicles discharge, any other thing. आप दिल्ली में देखिए बोलते हैं लोग कि इस समय में हवा बहुत प्रॉब्लम करने लगती है. सो इट कैन कम फ्रॉम एनीवेयर. द वेस्ट एरिया, वेस्ट मटेरियल अगर जो है कुछ है, नेचुरली अकरिंग टॉक्सिन्स जो बोलते हैं, नेचुरली अकरिंग टॉक्सिक सब्सटेंसेस, नॉट्स जिसको बोलते हैं, ये सारे हो सकते हैं. अच्छा, पेस्ट, पेस्ट मतलब बर्ड, मक्खी, मच्छर, एनी काइंड ऑफ से क्रॉलिंग पेस्ट, जैसे छिपकली है, चूहा है, रोडेंट, ऑल दीज आर कॉल्ड एज पेस्ट. तो उनसे हो सकता है. एनी अडल्ट्रेंट, कोई जानबूझ करके कोई चीज डाल दिया अडल्ट्रेशन करने के लिए. वन ऑफ द अडल्ट्रेशन, मिल्क में बहुत अडल्ट्रेशन होता है. कुछ लोग एक जमाने में बोलते थे कि यूरिया मिला दी जाती है टेम्परेचर वगैरह कंट्रोल करने के लिए, खराब ना हो. तो दैट काइंड ऑफ थिंग है अडल्ट्रेंट, एनी काइंड ऑफ अडल्ट्रेंट, any kind of contaminants, heavy metals and all those things. कैंसर का एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है आर्सेनिक and all, which is gone shipped through our agriculture activities to the groundwater. So that is also another thing. So all those things are happening. Wherever there are processed and packaged is happening, we have to take care. आजकल नए नए चीजें आ गई हैं. आज हम इरेडिकेशन करके फूड बना देते हैं. तो इरेडिकेशन के कारण से कहीं ऐसा तो नहीं है कि इट इज गोइंग टू इम्पैक्ट आवर जीन्स लेटर ऑन. Not now, maybe later on. So ये सारी genetically modified food है ना, ये सारी चीजें. Water can also be a big source for hazards. And किस टाइप के plant origin foods हैं? Fruits and vegetable. Fruits and vegetable बहुत रिस्की है, क्योंकि fruits को हम raw खाते हैं, vegetable को भी हम कुछ raw खा जाते हैं, because we are eating
as a salad and all those things. Right? So it is having very risky because there is no transformation happen. So we need to be careful. Cereals, pulses, spices, mushrooms and any other additives. जैसे हम लोग food color, food additives, enhancers, emulsifiers, ये सारी चीजें यूज करते रहते हैं फूड में. So it is definitely going to have a big chance and these are the hazards coming. So in general I said आप लोग थोड़ा सा और पढ़ लीजिएगा जहां पे भी आपको HACCP वगैरह पढ़ाया गया होगा, hazard के बारे में बताया गया. I am sure you will be having a course on that. So please read considering all those things. Here also when we are doing any kind of processing, we need to take care for the byproduct, process byproduct, leaching, etc. from the surfaces, sanitizers, contamination through storage and handling, packaging, migration, preservative, all those things we have to consider. So you can imagine that food is not so simple, whatever we are eating, but it is very complex and we are making it more complex that मुझे तो इटालियन फूड खाना है, मुझे तो अमेरिकन चीज खानी है, हमें ये खाना है, हमें वो खाना है. So all those things are there. So it is really have a problem. Okay. Water. So water is also very important source because water, I don't know whether it is considered as food or not, but definitely whatever we are ingesting is actually food for us. हम लोग अपने मुंह से अंदर जो भी ले रहे हैं सब फूड है. So water quality, अगर आप देखेंगे तो ड्रिंकिंग वाटर क्वालिटी IS 10500. इंडिया में बहुत सारे लोगों को कैंसर हो रहा है, बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है, बहुत सारे लोगों को हो रहा है. वन ऑफ द रीजन इज वाटर प्रॉब्लम एंड दैट्स व्हाई अगर आप देखेंगे तो जल ही जीवन, नल से जल और ये सब स्कीम जो चलाई जा रही हैं, वन ऑफ द रीजंस इज दैट टू सेफगार्ड द पीपल फ्रॉम दैट. तो बट ये सब चीजें ध्यान रखिए. जो दीज आर द स्टैंडर्ड, इंडियन स्टैंडर्ड है ड्रिंकिंग वाटर के लिए, तो उसमें बहुत सारा चीजें अगर आपको कहीं मौका मिलता है तो देखिएगा. पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर, जैसे हम लोग बिस्लेरी या कोई भी ऐसा पानी पीते हैं, उनके लिए अलग स्टैंडर्ड है IS 14543. पैकेज्ड नेचुरल मिनरल वाटर IS 13428. प्रोसेस वाटर जो इंडस्ट्री में यूज होता है IS 4251 फूड इंडस्ट्री वगैरह. सो ऑल दीज थिंग्स आर देयर. दिस इज वाटर क्वालिटी स्टैंडर्ड फॉर द इंडियन रिक्वायरमेंट. देन देयर आर WHO गाइडलाइन, EU रिक्वायरमेंट, US FDA रिक्वायरमेंट. फॉर एग्जांपल आई नो फॉर EU रिक्वायरमेंट इट इज कॉल्ड एज वाटर क्वालिटी 98/83/EC. अगर सी फूड इंडस्ट्री में हमें वाटर यूज करना है एंड द कंपनी, द प्रोसेसर, इफ दे आर सप्लाइंग टू यूरोप, they need to have their water tested as per 98/83/EC. So requirements are there: physical, physicochemical, microbiological, chemical, naturally occurring toxins, banned substances. So many things are there in that. Okay, so there are almost around 89 or 100 parameters, something like that. So we need to be careful. So water, because without water we are not consuming the food, we are not preparing the food, we are taking after this also. So we need to be careful because water also is very important. And you can understand, just example I am giving, you can just imagine how the groundwater is getting polluted. Industry है, industrial waste जा रहा है, सीवेज वेस्ट है हमारे आपके टॉयलेट से, जहां से भी आप देखिए, क्योंकि सबके लिए जरूरी है, तो दैट इज गोइंग समवेयर. रेन वाटर का कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, जिनके साथ में और भी कंटामिनेंट्स हैं, वो सब आ रहे हैं. So you can imagine that what kinds of water, groundwater, how it is. पेस्टिसाइड का छिड़काव कर रहे हैं, वो सब भी कहीं न कहीं जितना क्रॉप में जाता है उतना जाता ही है, बट डेफिनेटली इट गोज इन द ग्राउंड एंड देन थ्रू कैपिलरी एक्टिविटीज इट गोज इन द ग्राउंड वाटर एंड अल्टीमेटली इट गोज इन एनीवेयर. बिकॉज आप जैसे जानते हैं कि ग्राउंड जो है कैपिलरी के थ्रू पूरा जुड़ा हुआ है. ग्राउंड वाटर, दे आर ऑल कनेक्टेड. तो वी नीड टू बी केयरफुल. आप लोग जानते होंगे, पहले लोग बोलते ना, पहले पुराने जमाने में पानी बहुत मीठा होता था, बड़ा अच्छा होता था. आज जो है, जो नल से निकला हुआ है, आप गांव में भी उसको आपको प्यूरिफाई किए बिना पीना बहुत मुश्किल है. हर घर में एक्वागार्ड या जो भी प्यूरिफायर्स हैं सब जगह पे लग रहे हैं. So we need to be careful. Okay. So water quality in food safety, it is very important and it can come through this thing. कभी कभार फूड के साथ में वाटर भूल जाते हैं. That's why I am putting it, emphasizing it. Okay. Because it constitute major percentage of all food. अगर हम दाल बनाते हैं तो उसमें दाल कम होता है, पानी ज्यादा होता है. सब्जी बनाते हैं उसमें कम होता है. मटर पनीर बनाना है तो उसमें पानी ज्यादा होता है. वो थ्रू जूस, लोग बोलते हैं ना, उसका रस्सा दे दो, ऐसा हमारे यहाँ पे जब भी बात होता है
सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सांभर बनाते हैं तो उसमें पानी ज्यादा होता है। हर जगह पे जो है पानी, मतलब फूड में इट बिकम्स ए मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट। ड्रिंकिंग में हम डायरेक्टली ले रहे हैं, और आजकल तो डॉक्टर्स और जो भी हमारे हेल्थ वॉरियर्स हैं वो लोग बोलते हैं 3 लीटर 4 लीटर ऐसा पानी पियो, सेफ है। तो पानी सेफ होना चाहिए, वो भी है, वो भी ध्यान रखना है। हमें यूटेंसिल साफ करना है, पानी से ही साफ करते हैं। घर साफ करना है, जहाँ पे बैठना है, जहाँ पे खाना है, प्लेट खाना जिसपे खाना है, ऑल दोस थिंग्स दीज आर हैविंग ऑल कंटामिनेंट्स, एग्रीकल्चर रेजिड्यूज, इंसेक्टिसाइड, हर्बिसाइड, industrial and environmental pollutions, nitrates, heavy metals, antibiotics, organic products, oil, grease, pathogens, ट्राईहेलोमीथेन, जो भी ये हो जाते हैं बाई प्रोडक्ट जो बनाते हैं, हैलोजन, all these things are there, so we need to be careful, because you can imagine what kind of complex situation it is, but we have to be। आप देखो कुछ एग्जाम्पल हैं आपके सामने फूड स्कैंडल के जो फ्रॉड हुए थे। हॉर्स मीट हमने शुरू में देखा, मेलामीन, चाइना में मेलामीन पाउडर डाल दिया गया था मिल्क पाउडर में। जस्ट इमेजिन मिल्क पाउडर, जस्ट इमेजिन द हाउ डेंजरस इट इज, बिकॉज अगर छोटा बच्चा 1 दिन का हो, 2 घंटे का हो, 4 घंटे का हो, इन केस अगर वो अपनी माँ का दूध नहीं पी सकता है तो उसको बाहर का पाउडर्ड मिल्क में से ही हम लोग कन्वर्ट करके, डॉक्टर उसको बोलते हैं, किसी के घर में अगर बच्चा पैदा होता है तो आप देखिए हॉस्पिटल में ही दूध का पैकेट हॉस्पिटल वाले ही बोलते हैं लाकर। So how difficult it is, how dangerous it is। आप देखिए आज ही कल में मैं कहीं देख रहा था, हनी में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, शुगर लोग ऐड कर देते हैं, और भी कुछ प्रॉब्लम्स है। घी में फैटी एसिड ऐड कर देते हैं, जो भी घी है, काऊ घी है या कोई भी घी है। पाम ऑयल इन ऑलिव ऑयल, ऑलिव ऑयल को मिक्स करने के लिए ये कर देते हैं। ग्लोबल प्रॉब्लम्स है ये। मिल्क में हमने यूरिया, मिलामीन, टी में हम लोग सॉडस्ट ऐड कर देते हैं, टी पाउडर में सॉडस्ट, चिली पाउडर में सूडान डाई का प्रॉब्लम आया था। नूडल्स, मीट, फिश, फॉर्मेल्डिहाइड, आपने सुना होगा कि आंध्रा से जो फिश आ रही है उसमें फॉर्मेल्डिहाइड ज्यादा है, फॉर्मेलिन यूज करते हैं फिश को ये करने के लिए। 2-3 साल पहले मुझे लगता है कि CIFT ने कुछ उसके ऊपर कुछ किट वगैरह भी बनाई है टेस्ट करने के। सो यू कैन जस्ट इमेजिन व्हाट काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स आर देयर। टर्मरिक में लेड क्रोमेट, सो जस्ट इमेजिन ये सारी चीजें हमें खानी पड़ती हैं कहीं ना कहीं, एंड जस्ट इमेजिन हाउ इट इज। सो आपने देखा होगा एक बड़ा स्कैंडल हुआ था अभी, नाम नहीं लेना चाहिए, बट बच्चे लोग खाते हैं, बड़ा टेस्टी होता है, ये नूडल्स खाते हैं, उसके बारे में नाम मैं नहीं ले रहा हूँ कंपनी का, बट पूरा ग्लोब में हमें लेना पड़ा था, बहुत प्रॉब्लम हुआ था इंडिया में, है ना। तो यू कैन इमेजिन आपके आजू बाजू में बहुत सारा प्रॉब्लम होता है। लिकर वगैरह के और जोड़ दोगे तो, और अगर आप देखोगे तो जहां पे फूड का प्रॉब्लम है, इफ यू गो टू द वेबसाइट यू विल गेट प्लेंटी एंड प्लेंटी ऑफ थिंग्स एवरी डे प्रॉब्लम। सो जस्ट वी हैव टू बी केयरफुल एज ए फूड सेफ्टी प्रोफेशनल, आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी इंक्रीजेस, and if these kind of problems are there, opportunities also come along, we need to be careful on that. So what is quality? So now we have understood what is safety, what is quality. Do you feel quality means luxury कि मैंने 200 रुपए का शर्ट पहना है या 500 रुपए का पहना है, कौन सा क्वालिटी है? Whatever is desired by us, देखेंगे आगे क्या है क्वालिटी का मतलब। क्वालिटी इंप्लाइज हायर कॉस्ट, क्वालिटी प्रॉब्लम्स आर कॉज्ड बाय ऑपरेटर्स, कि जो कर रहे हैं वही बना देते हैं, वही प्रॉब्लम करते हैं। क्वालिटी प्रॉब्लम्स आर सॉल्व्ड बाय द इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट, ऐसा सब चीजें तो नहीं। हम लोग आगे देखते हैं कि क्या है क्वालिटी। सो व्हाट इज क्वालिटी? क्वालिटी इज डिग्री to which a set of inherent characteristics fulfill requirement। अब आप देखिए हमारे यहाँ पे सीजन सेल बहुत होता है, ओके। लोग बोलते हैं ना कि अभी सेल लग गई है कपड़ों की या कोई भी चीज के लिए सेल है। आजकल तो ऑनलाइन वगैरह चलता रहता है, तो हर जगह पे कुछ ना कुछ डिस्काउंट है, कुछ ना कुछ है, तो कहीं ना कहीं बट हम लोग खरीदते हैं वो। तो इसका मतलब व्हाट एवर इज डिजायर्ड टू अस, इफ इट इज देयर देन इट इज क्वालिटी। अगर मुझे 200 रुपए का शर्ट पसंद आ रहा है, उसका कलर पसंद आ रहा है, उसका बनावट पसंद आ रहा है, तो सब कुछ सही है। बट अगर मैंने 500 रुपए की या 2000 रुपए की चीज खरीद ली, उसका कलर मुझे सही नहीं है, उसका बटन मुझे सही नहीं लग रहा है, वो साइज मेरे को फिट नहीं हो रही है, तो मे बी दैट इज नॉट ए क्वालिटी प्रोडक्ट, ओके। तो ये सारी चीजें हमें जानना है। व्हाट डज दैट मीन? रिक्वायरमेंट कवर्स बोथ नीड एंड एक्सपेक्टेशन। फॉर एग्जाम्पल
अगर आप कोका कोला पीते हो कहीं पे, तो आप ये नहीं बोलते हो कि मुझे चिल्ड चाहिए, आप एक्सपेक्टेड होता है कि ये चाहिए चिल्ड। आप चाय पीते हो तो आप ये नहीं सोचते हो कि गर्म चाय, चाय आपको गर्म चाहिए। ये है। अगर आप आइसक्रीम खाते हो तो ऐसा नहीं है कि वो पिघली हुई होनी चाहिए, दैट शुड बी इन दैट पर्टिकुलर फॉर्म। टेम्परेचर तो मैं नहीं बोल सकता किसमें, बट इट इज एक्सपेक्टेड दैट इट नीड्स टू फ्रोजन, फर्मली फ्रोजन, है ना। तो ये सारी चीजें हैं। अगर आप बियर पीते हो फॉर एग्जाम्पल, एंड यू नो दैट कि हमें जो है चिल्ड ही चाहिए, ऐसा करके रहता है। सो पीपुल डोंट से दिस, दीज आर द एक्सपेक्टेशन। सो देयर इज अ रिक्वायरमेंट एंड देयर इज अ एक्सपेक्टेशन, तो दोनों हमें फुलफिल करना है। अगर किसी ने हमें गरम चाय की जगह कोल्ड चाय पिला दिया, सो इट इज नॉट गुड। So customer satisfaction includes stated as well as implied needs expectation, जो मैंने आपको बता ही दिया है। I will not be happy if somebody is giving me cold tea. I will not be happy if suppose somebody is not giving me cold drink which is not giving me right temperature. It is not chilled or something like that. इसीलिए अगर आपने देखा होगा तो हर गली कूचे में जहां पे भी किराना शॉप है और जहां पर भी कोल्ड ड्रिंक वगैरह बेचा जाता है, रिटेल करते हैं, the requirement of that company is to provide the deep freezer or the freezer with the standy freezer with the display and all those things. वो उनकी requirement है, and that is one of the customers implied need, expectation है उनकी, satisfying customers and other interested parties. And who are the other interested parties? Regulatory body, legal, statutory, regulatory, all those. A product, system or service or any combination. क्वालिटी जो है वो प्रोडक्ट की भी हो सकती है, कोई सिस्टम की हो सकती है, या सर्विस की हो सकती है। फॉर एग्जांपल हम फिश प्रोडक्ट अगर ले रहे हैं तो क्वालिटी ऑफ फिश प्रोडक्ट। बट अगर हम एक रेस्टोरेंट में जाते हैं और फिश का ऑर्डर करते हैं and he gives us after half an hour or after the expected time whatever you have considered, तो आप dissatisfied हो, तो you are not dissatisfied with the product, you are dissatisfied with their system or service। कभी कभार हम दोनों चीजों को ध्यान में रखते हैं, satisfied और dissatisfied both। कभी कभार हम लोग जाते हैं किसी के यहाँ पे कुछ कुछ जगहों पे 50-50 किलोमीटर गाड़ी चला के जाते हैं कि वहां पे अच्छा खाना मिलता है, सेफ क्वालिटी फूड मिलता है, यार इसके लिए हम जा रहे हैं। तो दैट्स द एक्सपेक्टेशन। The organization will have to observe and understand the needs and expectation of its customer। तो कस्टमर को क्या जरूरत है, ये ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट है। आज हमें क्या चाहिए, ये हमारी रिक्वायरमेंट। अगर आप अमेजन में जाइए तो आपको कितना आसान होना चाहिए नेविगेशन में, वो अमेजन हमेशा करता रहता है। आज आप स्मार्टफोन यूज करते हो तो स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर मान लीजिए कि आईफोन है या सैमसंग का है या जो भी ब्रांड आप यूज करते हो, every 6 months, every 1 year they are doing some innovation and saying that नहीं ये प्रीवियस वाले से ज्यादा बढ़िया है। अभी आईफोन 11 या 12 कुछ चल रहा है कि वो पहले वाले से अच्छा था, पहले वाले से अच्छा था, पहले वाले से अच्छा था। तो जस्ट इमेजिन, बिकॉज दे आर अंडरस्टैंडिंग द नीड्स एंड एक्सपेक्टेशन एंड दे नो दैट कस्टमर्स आर रेडी टू पे आल्सो इवन। ओके, तो व्हाट इज सिस्टम? जब हम बात कर रहे हैं तो सिस्टम it's defined as set of interrelated or interacting element। मतलब कुछ चीजें हैं 1 2 3 4 5 and they are interacting together and based on that they are giving me। if I say for example this training is happening, so there are some interacting elements। for example as a trainer or as a lecturer I am one component into that, one element into that। आपका यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट through Mr. Ajit, Dr. Ajit and other his colleagues, they are one element। you as a participant at different places, you are various element। आज हम जो ये Zoom प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं, that's also one element into that। and see internet, that is also one element into that। इलेक्ट्रिसिटी, दैट आल्सो मे बी। फोन, स्मार्टफोन, जो भी लैपटॉप्स जो भी हम लोग यूज कर रहे हैं, अपना आईपैड और एनी टैबलेट व्हाटएवर वी आर यूजिंग, ऑल दीज आर एलिमेंट्स एंड व्हेन दीज एलिमेंट्स आर इंटरेक्टिंग इन अ राइट मैनर, even for
that matter timing also given into that. So if all these things are interacting in a right manner, they are giving a right result, and that's why we call, अरे यार हमने तो बड़े सिस्टम में काम कर दिया. So you can see very simple language, set of interrelated or interacting element. तो ये चीज है. एंड व्हाट इज वर्क सिस्टमेटिकली. अरे यार लोग बोलते हैं ना यार ये बंदा यार सिस्टमेटिकली काम नहीं करता है. हम ये घर में भी यूज करते हैं, ऑफिस में भी यूज करते हैं, अपने दोस्तों के साथ में भी करते हैं, हर जगह पे. बट व्हाट इज दैट वर्क सिस्टमेटिकली? टू बी इफेक्टिव, वेरी इंपॉर्टेंट, इट नीड्स टू बी इफेक्टिव. Things have to be organized in a suitable, practical way. So suitable and practical बहुत important है. And should be done in a certain sequence. कुछ सीक्वेंस में. आज जैसे हमने ये काम किया, अभी कल अजीत, मतलब कल नहीं, 15 दिन पहले या 2 हफ्ता, 3 हफ्ता, 20 दिन पहले, 10 दिन पहले अजीत जी ने मुझे अप्रोच किया एंड बोला कि सर ऐसा ऐसा काम करना है, आप कर सकते हैं? तो मैंने बोला हाँ. देन ही आस्क्ड माय डिटेल्स, आई फॉरवर्डेड. He might have taken the approval, then he might have decided the day, he has come to a time, and my dates, your dates, everybody's date, management ka date, and he has come to a time and topic. And so if you see, now we are working in a systematic way. Everybody has been connected at 10:30. We are working for 1.5 hours, and what is the effective thing here? That we are talking for farm to fork approach in food safety and quality approach. Farm to fork food safety and quality approach. तो ये कहते हैं, इसको बोलते हैं वर्क सिस्टमैटिकली. इट नीड्स टू बी इफेक्टिव. अगर कोई चीज गड़बड़ हो जाए, इट इज नॉट गोइंग टू गिव, इट इज नॉट इफेक्टिव, इट इज नॉट, वी हैव नॉट वर्कड इन द सिस्टमैटिक मैनर. सो system to establish policy and objectives and to achieve those. हेलो, 5 किलोमीटर मुझे जाना है. ठीक है यार, 5 किलोमीटर जाइए. अब वो आदमी 5 किलोमीटर पूर्व दिशा में, ईस्ट डायरेक्शन में चला गया. अजीत, आई एम क्लियर ना? ऑडिबल हूं? Sometimes your voice is muted. But no, it is fine. Now it is okay. It is okay. Okay. So suppose somebody says that you have to go you have to walk 5 kilometers or you have to run 5 kilometers, and he does not say direction, and you assumed that I have to go to east direction. तो आपने 5 किलोमीटर ईस्ट डायरेक्शन में चले. तो क्या हुआ? आपने बोला 5 किलोमीटर मैंने किया, ईस्ट डायरेक्शन में चला गया. अरे वो आदमी बोला नहीं नहीं यार, ईस्ट में नहीं जाना था, हमें तो वेस्ट में जाना था. सो अब आप देखिए कि बिना एक इंफॉर्मेशन बिना मिले रिजल्ट बड़ा अलग हो गया. नाउ यू आर एट -5. एक्चुअली आप पहले 0 पे थे, अभी -5 पे हो गए विद रेस्पेक्ट टू द डायरेक्शन व्हाट एवर हैज बीन. आपने एनर्जी, टाइम, एफर्ट सारा वही डाला जो इस डायरेक्शन में जाना था. तो अगर आपने डायरेक्शन मिल गया होता तो यू वुड हैव अचीव्ड 100%. टुडे एक्चुअली यू आर अचीव्ड 100% माइनस. ओके, सो दैट्स व्हाट इट इज कॉल्ड एज मैनेजमेंट सिस्टम. तो हमें गोल्स और पॉलिसीज करना है, डिसाइड करना है, एंड उसके हिसाब से हमें अचीव करना है. सो दैट्स कॉल्ड एज मैनेजमेंट. एंड व्हाट इज क्वालिटी मैनेजमेंट? कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटी टू डायरेक्ट एंड कंट्रोल एंड ऑर्गेनाइजेशन विद रिगार्ड टू क्वालिटी. 1 मिनट का ब्रेक ले रहा हूं, मैं थोड़ा पानी पी रहा हूं. श्योर सर, श्योर सर. So sorry, I am back. So quality management is coordinated activity to direct and control an organization with regard to quality. Quality क्या है हमने ऑलरेडी देख लिया है. What is food safety? So food safety management is quality coordinated activity मैनेजमेंट. ओके, सो और भी थोड़ा सा डायरेक्शन दिया गया है, यहाँ पे डेफिनेशन दिया गया है. सिस्टम टू डायरेक्ट एंड कंट्रोल एन ऑर्गेनाइजेशन विद रिगार्ड टू क्वालिटी एंड फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम ए सेट ऑफ इंटर रिलेटेड और इंटरेक्टिंग एलिमेंट्स. अब आप देखिए पूरा तीनों को एक साथ ला दिया है जो पहले प्रीवियस स्लाइड में देखा. एलिमेंट टू एस्टैब्लिश पॉलिसी, ऑब्जेक्टिव एंड अचीव दोज ऑब्जेक्टिव्स
used to direct and control an organization with respect to food safety. So बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो भी लोग बना रहे हैं, जो भी प्रोडक्ट बना रहे हैं, उसका इंपॉर्टेंट है कि दैट इज गिविंग द राइट रिजल्ट टू द कंज्यूमर. What is the purpose of quality and food safety management? First of all, achieving business objective and goals, managing process effectively and efficiently, efficient use of resources, enhanced customer satisfaction and confidence, continual improvement, reduce unwanted losses, compliance with customer regulatory and regulatory requirements. So this is the purpose of quality and food safety management. And what are the various elements of quality and food safety management system? So there are 4 elements: prerequisite requirements, prerequisite programs. So what are the prerequisite? आपने PRP वगैरह पढ़े भी होंगे, but their definition is basic conditions and activities that are necessary to maintain hygienic environment throughout the food chain. अगर आप देखिए तो food chain throughout, so right from farm to fork, suitable for the production, handling and provision of safe end product and safe food for human consumption, human environment. Then HACCP principles. आप लोगों ने पढ़ा होगा कि there are 7 principles. Then you might have also studied there are 5 preliminary steps. Okay, so they are coming into that. I am not going into that क्योंकि वो बहुत बड़ा हो जाएगा, time management भी अपने को करना है. Then system management, system element जिसको बोलते हैं. Okay, management system element. Okay, जैसे अभी हमने बात किया, system to establish policy and objective and to achieve those objectives and thereby improving the efficiency and effectiveness. And all on top of that, interactive communication. Interactive communication क्या है? टू वे कम्युनिकेशन. जैसे अभी मैं आपसे बात कर रहा हूं, बीच बीच में मैं अजीत से बात करता हूं, यार कि सुनाई पड़ रहा है नहीं, तो दैट इज कॉल्ड एज टू वे कम्युनिकेशन. मैं उनसे पूछ रहा हूं और वो बोल रहे हैं हाँ ना बीच में जो भी है. तो दिस इज कॉल्ड इंटरेक्टिव. तो आज जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, फूड प्रोसेसर्स हैं, दे शुड कीप ऑन टेकिंग द फीडबैक फ्रॉम द मार्केट, फ्रॉम द कंज्यूमर, फ्रॉम द कस्टमर. सो दैट इज कॉल्ड एज इंटरेक्टिव कम्युनिकेशन. एंड इंटरेक्टिव कम्युनिकेशन इज नॉट ओनली विद द कस्टमर, इंटरेक्टिव कम्युनिकेशन विद द ऑल द स्टेक होल्डर्स. तो स्टेक होल्डर्स क्या हैं? रॉ मटेरियल सप्लायर्स हैं, फार्मर्स हो सकते हैं, पैकेजिंग मटेरियल सप्लायर हो सकते हैं, प्रोसेसर्स हो सकते हैं, रेगुलेटरी बॉडीज हो सकती हैं, रेगुलेटरी अथॉरिटीज हो सकती हैं, कस्टमर हो सकते हैं, कंज्यूमर्स हो सकते हैं. तो ऑल दीज आर स्टेक होल्डर्स और इन सबके बीच में होना चाहिए. और कैसे ये इंटरेक्ट करते हैं? तो अगर आप देखेंगे तो ये तरीका है ये करने के लिए. प्रीरिक्विजिट प्रोग्राम अगर आप देखोगे तो जहां पे जो भी ऑर्गेनाइजेशन है वहां पे होना चाहिए, जो भी एस्टैब्लिशमेंट है वहां पे होना चाहिए, थ्रू आउट द सप्लाई चेन जहां पे है सब प्रिंसिपल्स इंप्लीमेंटेड होने चाहिए, सिस्टम एलिमेंट होने चाहिए. अगर ये जो है 2 एरो देख रहे हो तो इसका मतलब दोनों साइड से, इधर से भी और उधर से भी जाना चाहिए, इंफॉर्मेशन पास होना चाहिए, कम्युनिकेशन पास होना चाहिए. और अगर आप देखोगे तो एक्सटर्नल कम्युनिकेशन बाहर है. अगर आप देखोगे जिस भी साइड में, चारों साइड में, 2 साइड में लिखा है, चारों साइड में, तो इस साइड में, उस साइड में, इस साइड में, कहीं पे भी, तो थ्रू आउट द स्टेक होल्डर्स कम्युनिकेशन, एक्सटर्नल एंड इंटरनल कम्युनिकेशन विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, वो भी होना चाहिए. एंड ये सारा जो है थ्रू आउट द चेन इंटरेक्टिव कम्युनिकेशन होना चाहिए, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. कोई भी फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड जब होता है तो उसमें क्या क्या टॉपिक्स कवर होते हैं. क्वालिटी एंड फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड जो होता है तो उसमें प्री रिक्विजिट प्रोग्राम्स होते हैं. ओके, प्री-रिक्विजिट प्रोग्राम्स क्या है? These are various requirements if anywhere we are going. So farming, अगर जो है हम फार्मिंग में जा रहे हैं तो फार्मिंग practices. If it is aquaculture, what are the aquaculture practices? Okay, sanitation and sanitation controls. हाइजीन भी कह सकते हैं उसको. पेस्ट कंट्रोल, पर्सनल प्रैक्टिसेस, हैंड वॉश, आज जो है जैसे हो रहा है ना, डिसइंफेक्ट करो. सो एनी पर्सनल प्रैक्टिसेस, पर्सनल बिहेवियर भी, कोई क्या खा रहा है, कोई क्या कर रहा है, हाउ दे आर कीपिंग देमसेल्फ हाइजीनिक. So personal practices, identification and traceability. अगर आपने देखा होगा शुरू से बोला है, throughout the supply chain traceability needs to be maintained. Recalls and withdrawals. Recall and withdrawal, अगर मान लीजिए कोई प्रॉब्लम्स होती है, जैसे मैंने बताया अभी नूडल्स की बात, so they have done some recalls and all. हमारे घरों से भी वापस लिया था उन्होंने, मार्केट से वापस लिया था, फैक्ट्री से वापस लिया.
facility, ground and equipment. So how is the facility, how is the area where it is, and how is the equipment? Control of inspection, measuring and testing equipment. Maintenance, जो equipments में हम use कर रहे हैं, how we are maintaining them. Utilities, तो utilities में क्या आता है? Water, air, temperature, anything we are going to use. Gases, आज अगर आप चिप्स वगैरह देखो तो उसमें गैस भी भरी रहती है, कार्बन एंड नाइट्रोजन का मिक्सचर होता है, कभी कभार नाइट्रोजन होता है तो सेल्फ लाइफ देने के लिए. सो ये सारी चीजें हैं, तो वो भी जो है यूटिलिटीज में आते हैं. क्राइसिस मैनेजमेंट, आप देखिए अभी कोविड-19 से बड़ा क्राइसिस कहीं नहीं आया होगा. So this is one of the management that we are doing this lecture through this virtual platform, but we are managing our activity. So this is the thing. So lot of people have managed throughout the globe. It is being managed. Government level पे manage करना पड़ा, प्राइम मिनिस्टर लेवल पे बात करनी पड़ी, गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के लेवल में बहुत सारी तरीके से लोग काम कर रहे हैं. ओके, तो क्राइसिस मैनेजमेंट करने के बहुत सारे. तो क्राइसिस कैन बी एनीवेयर. अगर अभी इलेक्ट्रिसिटी चली जाए हमारे काम में तो कैसे मैनेज करेंगे, दैट इज. इंटरनेट फेलियर हो जाए तो कैसे करेंगे. सो दैट काइंड ऑफ सिचुएशन इज. ओके, देन व्हाट इज फूड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी. सो हैसअप सिस्टम जो हमने बात किया है, अलर्जन कंट्रोल जो अभी हमने बात किया कि इतने सारे अलर्जन, प्रिवेंशन ऑफ क्रॉस कंटामिनेशन, एक दूसरे से कोई चीज का क्रॉस कंटामिनेशन ना हो जाए. अभी आपने देखा है इस कोविड में क्रॉस कंटामिनेशन के लिए ही 2 गज की दूरी बहुत जरूरी, ये सब बातें चल रही हैं. सो दिस इज नथिंग बट क्रॉस कंटामिनेशन ना हो जाए. गुड लैबोरेटरी प्रैक्टिसेस, इंस्पेक्शन एंड टेस्टिंग. तो क्या क्या हमें लैबोरेटरी में टेस्टिंग करनी, स्टैट्यूटरी एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट. फूड फ्रॉड, फूड सिक्योरिटी, फूड डिफेंस. बहुत फूड फ्रॉड होना है, उसके लिए हमें फूड सिक्योरिटी लाना है और हमें फूड डिफेंस करना है. तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हमें ध्यान में रखना है. तो प्री रिक्विजिट हो गया एंड फूड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी हो गया. क्वालिटी सिस्टम में हमें क्या ध्यान देना है, मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी. ओके, इंटरनल कंट्रोल्स, तो व्हाट आर द मॉनिटरिंग एंड मेजरमेंट्स रखा है हमने. ऑडिटिंग जैसे हम लोग बात कर रहे हैं, हम लोग बात की बहुत सारा ऑडिटिंग करते हैं, तो दे आर द कंट्रोल्स. ट्रेनिंग एंड कॉम्पिटेंस डेवलपमेंट, जो लोग होते हैं, आगे भी हम पढ़ेंगे ट्रेनिंग एंड कॉम्पिटेंस क्या है, बट ट्रेनिंग एंड कॉम्पिटेंस लोगों की कुशलता बहुत जरूरी है ये काम करने के लिए. डॉक्यूमेंट अगर हमारे पास है तो डॉक्यूमेंट एंड डेटा कंट्रोल. आज हर जगह है कि हम अपना आधार कार्ड नहीं देंगे क्योंकि सिक्योरिटी ब्रीच हो रहा है. आज अगर आप जाते हो कहीं पे, अगर आप एक रेस्टोरेंट में जाते हो और वहां से निकलते हो, तुरंत आपको गूगल का या किसी का जो है अलर्ट आ जाता है कि हाउ वाज द प्लेस, वेयर डिड यू. तो ये है डेटा एंड ये. सो डॉक्यूमेंट और डेटा कंट्रोल कैसे आप कर रहे हो. प्रोडक्शन एंड प्रोसेस कंट्रोल वो कैसे कर रहे हो. इक्विपमेंट का क्या है, टेम्परेचर कितना होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल अभी आप जहां पे बैठे हो, मान लीजिए वहां पे एसी चल रहा है, तो हाउ मच शुड बी द टेम्परेचर, तो आप उसी हिसाब से एसी का टेम्परेचर फिक्स करते हो. आप घर में फ्रिज होता है, आप फ्रिज का टेम्परेचर फिक्स करते हो जैसी जरूरत होती है उस हिसाब से. तो ऐसे ही लंबे मतलब फैक्ट्रीज में कैसे है, उनका कंट्रोल कैसे किया जा रहा है. सप्लाई चेन कंट्रोल, so how you are managing your supplier, how you are managing your service provider, how you are managing your customers and consumers, so that is also important. And continual improvement, कैसे आप improve कर रहे हो हर दिन. बात किया ना ये iPhone Pro 12 और उससे पहले 11 और 12, तो कैसे कैसे आप continually improve कर रहे हो. And what are the customer services you are providing, consumer services, customer services, है ना. तो ये सारी चीजें हैं. अजित, it is going well? Yes sir. Yes sir. Okay, great, no problem. मैं बीच में कुछ आवाज दिखाई नहीं पड़ता है तो मैं सोचता हूँ मैं हूँ नहीं हूँ, पता चला कि basically it's a problem when we conduct any online correct. webinar, so it's a problem because sometimes we feel that we are alone in the group. इसीलिए जो है बीच बीच में कुछ इंडिकेशन देते रहिए जिससे कि लगे कि हाँ it is live session है. Yeah. So these are the quality systems we are having, and this is the interactive communication हमने बात किया हुआ है. अगर आप देखोगे तो एक साइड में रेगुलेटरी अथॉरिटीज हैं, एक साइड में कंज्यूमर्स हैं, क्रॉप प्रोड्यूसर, फीड प्रोड्यूसर, प्राइमरी फूड प्रोड्यूसर, फूड प्रोड्यूसर्स, फूड प्रोसेसर, secondary food processors, wholesaler, retailer, and then it comes to consumer, and then pesticide, fertilizer, veterinary manufacturer. आप देखोगे पूरा सर्विस, ये पूरा that is the way it has to be interactive communication. पूरा जितना भी ये नेटवर्क है सब में इफेक्टिव कम्युनिकेशन, इंटरेक्टिव कम्युनिकेशन जो इफेक्टिव हो वो होना चाहिए. तो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट.
बेनिफिट्स क्या है क्वालिटी एंड फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम्स के? इट इज अ सिस्टमैटिक अप्रोच। हमने बात कर लिया सिस्टम सिस्टमैटिकली क्या है, तो इट इज अ सिस्टमैटिक अप्रोच। देन अगर आप इसको अप्रूव करते हो, इंक्लूड करते हो, तो इट इज गिविंग यू कंप्लायंस विद द कस्टमर स्टैट्यूटरी एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, है ना। तो आप कहीं गड़बड़ नहीं हो जाएगा, कहीं ये प्रॉब्लम नहीं हो जाएगा। ऑर्गेनाइज्ड एंड टारगेटेड कम्युनिकेशन एमंग ट्रेड पार्टनर्स, अभी हमने बात किया इंटरेक्टिव, इफेक्टिव इंटरेक्टिव कम्युनिकेशन। तो हर जगह पे जहां पे भी है, हर जगह पे हम कम्युनिकेटेड रहे। फैसिलिटेट बेटर बिजनेस प्रोसेस है। हम लोगों ने कैसे पहले करते थे, अगर हमने ये इंप्लीमेंट किया और सिस्टमैटिक तरीके से इंप्लीमेंट किया तो ज्यादा अच्छे तरीके से काम कर पाएंगे, हमारा बिजनेस सर्विस अच्छा हो जाएगा, हमारा प्रोडक्ट अच्छा हो जाएगा। ड्यू डिलिजेंस, इंक्रीज ड्यू डिलिजेंस। आज क्या है ड्यू डिलिजेंस? क्या है, आप जो है कहीं पे जा रहे हो और वहां जाने का खर्चा 50 रुपए होता है, पर आप जेब में 100 रुपए लेके जा रहे हो। क्यों? मान लीजिए कहीं रास्ते में कोई गड़बड़ी हो गई, मान लीजिए मुझे चाय पीना पड़ गया, मुझे पानी पीना पड़ गया, तो दैट्स कॉल्ड योर प्रिपेयर्डनेस है। आज आप घर के बाहर निकलते हो तो मास्क लगा लेते हो, किसी के साथ में हाथ नहीं मिलाते हो, दूर से बात करते हो, आप जो है सैनिटाइजर यूज कर लेते हो, बीच बीच में आधे घंटे 1 घंटे में जेब में रखे रहते हो या बैग में रखे रहते हो। व्हाट इज दैट? इट इज ड्यू डिलिजेंस। ओके। सिस्टमैटिक मैनेजमेंट ऑफ प्री रिक्विजिट प्रोग्राम्स। अगर आपने प्री रिक्विजिट प्रोग्राम देखा, जो हमने 4 स्लाइड पहले देखा था, अगर हम इसको डालते हैं तो हाउ टू मैनेज सिस्टमैटिक एंड इंटरैक्टिव वे, so that is giving us the systematic management of that. Then it is also giving us better planning and less post process verification. अब आपने कोई प्रोडक्ट बना दिया, मान लीजिए हमने फिश प्रोसेस कर दिया, अगर हमने पहले ही सारा चीज बढ़िया कर लिया है तो वी आर श्योर दैट आवर प्रोडक्ट इज गोइंग टू बी वेरी गुड। ओके, तो ये है। अभी आप लोग जब अफ्रीका से कुछ आपके साथी जब आगे आपको लेक्चर देंगे, तो दे डू लॉट ऑफ फ्रेश एंड चिल्ड प्रोडक्ट सेलिंग टू द यूरोप। अफ्रीका से यूरोप में भेजते हैं, तो वो लोग बहुत सारा काम करते हैं, क्योंकि कभी कभार उन्होंने प्रोडक्ट बनाया और सीधा वो एयर फ्रेट में जाता है, फ्लाइट में जाता है, और रिजल्ट आने में हो सकता है 1 दिन 2 दिन लग जाए, माइक्रोबायोलॉजी, बट दे हैव देयर सिस्टमैटिक अप्रोच, देन इट गोज इन ए प्रॉपर वे। तो बेटर प्लानिंग एंड लेस पोस्ट प्रोसेस वेरिफिकेशन, मोर इफिशिएंट एंड डायनेमिक फूड सेफ्टी हजार्ड कंट्रोल। अगर आपने ये कर लिया है, आप देखिए मलिशियस इंटरवेंशन, अलर्जन, ये वो, अगर आपने ये सारा चीज कर लिया है, इट इज गिविंग यू मोर डायनेमिक हजार्ड कंट्रोल। लायबिलिटी और रिस्क कम हो जाता है, अगर आपने सारा चीज बढ़िया किया है तो आपकी सर्विसेज, आपका प्रोडक्ट अच्छा रहता है, तो आपकी लायबिलिटीज कम हो जाती है। नहीं तो कभी कभार आप कोई चीज खरीदिए और कुछ प्रॉब्लम निकला फूड में, अभी राइस किसी ने खरीदा और उसमें प्रॉब्लम निकला, तो उन्होंने जो भी मैन्युफैक्चरर थे उनको फोन किया उनके टोल फ्री नंबर पे, तो उन्होंने बोला सर मैं आपको दूसरा दे देता हूं, बताइए मत। तो दिस इज लायबिलिटी है, रिस्क कम हो गया। उन्होंने बताया, बोला क्यों नहीं बताइए, क्योंकि इट कैन बी ए नेगेटिविटी फॉर देम। वाइडली एप्लीकेबल एंड फोकस्ड ऑन एंड रिजल्ट, क्वालिटी एंड फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सारे लोग को जरूरत होती है वर्ल्ड वाइड, क्योंकि ये एंड रिजल्ट में मतलब सेफ फूड पे ध्यान देता है, क्वालिटी एंड सेफ फूड, दैट इज द एंड रिजल्ट। सो इसके लिए जो है दे आर इट इज वेरी ब्रिंगिंग द बेनिफिट। ओके, तो अगर आप देखोगे तो ये है फ्रॉम फार्म टू फोर्क है, तो पूरा हमने फार्म टू फोर्क, और इस दौरान हमारी क्या क्वालिटी एंड फूड सेफ्टी अप्रोच होनी चाहिए वो सारा बात किया। ये जो पहले वाला स्लाइड था, जो 2 स्लाइड अलग था, वही स्लाइड एक साथ है, और सारे स्टैंडर्ड की बात हमने कर ली है, तो ये फिर से मैं ये नहीं करने जा रहा हूं। अगर आप देखोगे तो हर जगह पे ये सारी सर्विसेज हैं, एडवाइजरी, कंसल्टिंग सर्विसेज, लैब सर्विसेज, ऑडिटिंग सर्विसेज, ऑडिटिंग सिस्टम, ग्लोबल सप्लाई चेन क्या है उसके हिसाब से है। सर्टिफिकेशन प्रोसेस, अगर आप जो है जानना चाहते हो कि सर्टिफिकेशन प्रोसेस क्या है क्वालिटी एंड फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम का, तो ये है उसका सर्टिफिकेशन प्रोसेस। 2 स्टेजेस में होती है, तो डॉक्यूमेंट रिव्यू, इनिशियल विजिट। तो कोई भी ऑडिट जब होती है तो इट इज अगेंस्ट सर्टेन रिक्वायरमेंट, फॉर एग्जांपल बीआरसी, आईएसओ 22000, एफएसएससी। अजीत ने जब मेरा इंट्रोडक्शन देते समय बताया था, वो वेरियस स्टैंडर्ड्स है, जैसे मैं उसके ऑडिटर, तो अभी हमें उस पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट का स्टैंडर्ड होता है, वो स्टैंडर्ड में जो भी कंपनी जाना चाहती है सर्टिफिकेशन के लिए उनको फुलफिल करना है। फॉर एग्जाम्पल, आप अपना एग्जाम देते हो एज ए स्टूडेंट, जब आप एग्जाम देते हो तो एग्जाम देने का क्या है, आप जो पढ़ाई किए हो उसी का एग्जाम होता है, जो सब्जेक्ट है उसी का एग्जाम होता है। ऐसे ही
तो इसको बोलते हैं क्राइटेरिया। तो जो भी क्राइटेरिया उन्होंने सेलेक्ट किया है उसके हिसाब से होता है, और देखा जाता है कि दे हैव implemented it properly, effectively or not. So what is the effective way of checking it? To see whether they have done or not. So how you are going to check? So you will check their document. तो कैसे document gives us guidance कि कैसे करना है। किताबें एक बार लिख दी जाती हैं and they are being used for 5-10 years. लाइब्रेरी में 50 साल पुरानी किताबें पड़ी हुई, they are giving guidance to us even now. तो ऐसे ही जो भी डॉक्यूमेंट है that gives us guidance, okay, for future. रिकॉर्ड क्या है? आपने जो बना लिया आज वो हो गया, आपने जो लिख लिया वो आज हो गया, ये रिकॉर्ड हो गया। इवन फॉर दिस प्रोग्राम इज बीइंग रिकॉर्डेड। तो ये रिकॉर्ड क्यों है कि पास्ट में क्या हुआ था। अब अजीत जी या उनकी टीम ने ये प्रोग्राम को रिकॉर्ड किया है, दे नो दैट हाउ मेनी पीपल वेयर देयर, व्हाट वेयर द टॉपिक्स, हाउ लॉन्ग इट हैज हैपेंड, व्हाट वेयर द डिस्कशन, हाउ व्हाट इज डिलीवर्ड। तो इनको हेल्प करेगा to analyze and see that how it went well or did not go well. तो ये सारी चीजें रहेंगी, और लोग जो होते हैं उनसे डिस्कशन होता है। जैसे अभी मैं अजीत जी से बीच बीच में पूछ रहा हूँ यार कैसे चल रहा है। अगर ये सेशन अभी मान लीजिए लाइव होता, क्लासरूम में होता, तो हम आपसे पूछते रहते कि क्या हो रहा है, आप मेरे से पूछते रहते। तो ये सारी चीजें, तो दैट इज द वे सर्टिफिकेशन हैपेंस। इट हैपेंस फॉर कलेक्टिंग द ऑब्जेक्टिव एविडेंस टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट, एंड वो करने के लिए डॉक्यूमेंट रिव्यू, डॉक्यूमेंट जो ये है रिकॉर्ड, इनिशियल विजिट फैक्ट्री में जा करके, और कैसी आपकी सिस्टम है, फैसिलिटीज है, प्री रिक्विजिट प्रोग्राम इंप्लीमेंटेड है कि नहीं, वो देखना है। और देन 2 स्टेज में है कि मान लीजिए अगर आपका नहीं है तो दूसरे स्टेज में भी देखना है कि कैसे आपने इंप्लीमेंट किया है। मान लीजिए पहले स्टेज में कुछ प्रॉब्लम निकला, दूसरे स्टेज में, दैट इज द वे इट इज बीइंग फाइनलाइज्ड। तो सर्टिफिकेशन प्रोसेस ये है। आपने जब सर्टिफिकेशन किया तो हो सकता है कि कुछ आपने फुलफिल नहीं किया हो, कुछ फुलफिल किया हो। तो जो फुलफिलमेंट ऑफ रिक्वायरमेंट इट इज कॉल्ड कंफर्मिटी, नॉन फुलफिलमेंट ऑफ रिक्वायरमेंट कॉल्ड नॉन कंफर्मिटी। तो नॉन कंफर्मिटीज निकल के आए हैं, तो नॉन कंफर्मिटीज निकल के आए हैं तो उन्हें आपको जो भी कंपनीज हैं उनको इम्प्लीमेंट करना है एंड उनको कंप्लाई करना है। तो उसके लिए अगर जरूरत है तो फॉलो अप करना है। फॉलो अप कैन बी ऑन साइट या फॉलो अप कैन बी वर्चुअल, फॉलो अप कैन बी विद डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, इट कैन बी एनी वे। So on site or documentary, that is the follow up. And then once it is all satisfied, all the parameters are satisfied, then certification is granted. And quality and food safety management वगैरह जो रहता है, इसकी सर्टिफिकेट 3 साल के लिए वैलिड होती है। और इस दौरान हर 6 महीने में, हर साल में उसको पीरियडिकल ऑडिट्स या सर्वेलेंस ऑडिट बोलते हैं, वो करते रहते हैं। कुछ सर्टिफिकेट्स हैं जिनकी वैलिडिटी 1 साल, तो उसमें हर साल रीसर्टिफिकेशन होता है। इस केस में 3 साल में रीसर्टिफिकेशन होता है। तो दिस इज कॉल्ड सर्टिफिकेशन। ओके, अगर आप जो है इंप्लीमेंट करना चाहते हैं क्वालिटी एंड फूड सेफ्टी कल्चर, अजीत जी आधा घंटा ज्यादा जाएगा तो इज देयर एनी प्रॉब्लम? Sir, we have another webinar, so you can finish it by 12:10. ठीक है, okay. So because after that we have a webinar for veterinary students. No problem. So हो सकता है अगर मान लीजिए इनका कोई क्वेश्चन आंसर रह जाता है तो we can have another session for 15-20 minutes later on कभी. Okay, some another day we will plan, sir. No problem. But जो है आप डिसाइड कर लीजिएगा कि जरूरत है, उसी हिसाब से टाइम फिक्स करिएगा। ठीक है सर। अपने स्टूडेंट से भी फीडबैक ले लीजिएगा। अब आप देखिए जैसे फूड सेफ्टी है, इट इज नॉट ओनली दिस, इट इज कल्चर साइंस, सोशल साइंस एंड फूड साइंस। तो ये कल्चर बहुत जरूरी है डेवलप करना है। अगर आप देखोगे तो लोग बोलते हैं मेरा कल्चर ये है, तो इसके ऊपर मैं चाहता था ये भी फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी में भी लोग कल्चर लाना चाहते हैं। एंड हाउ इट इज बीइंग ड्रिवन, इट इज ड्रिवन थ्रू कंपनी एंड पर्सनल कमिटमेंट, फूड सेफ्टी हैबिट्स लानी, आदत लानी, वर्कफोर्स एंगेजमेंट एंड ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन। अगर आप देखोगे तो यही सारी चीजें हमने डिस्कस किया था। अब ये फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी कल्चर इंप्लीमेंट कैसे करना है, हमें विजन एंड मिशन होना चाहिए, पीपल कैसे हमारे लोग काम करने वाले हैं उसके ऊपर, कैसे हम उनको एडॉप्ट कर रहे हैं, किस एडॉप्ट अगर हमने कर लिया तो हाउ कंसिस्टेंटली वी हैव एडॉप्टेड, एंड देन हजार्ड एंड रिस्क अवेयरनेस हमारी क्या है, जानकारी क्या है। तो ये है ना। टाइम कम है, अदरवाइज मैं इसके ऊपर ज्यादा देता था समय, बट थोड़ा सा मैं ये कर रहा हूँ इसको। ठीक है सर। फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी कल्चर में हाउ डू यू इंप्लीमेंट, दैट इज वन थिंग। देन we have to put it and we have to see, we have to plan the activities and we have to see how implements are there, and then we have to see
effectiveness, how the results are being come. So that's very, very important. Right? Benefits, food safety management system implementation के क्या है? Enhance food safety and reduces the risk of foodborne diseases, which is very important for any mankind, any consumer. Providing greater confidence to customers. Reduction in production cost through reduced wastages. अगर आपने सिस्टमैटिक कर दिया है तो राइट प्रोडक्ट इन फर्स्ट वो निकलता है तो आपको वेस्टेजेस नहीं होते हैं. फैसिलिटीज कंप्लायंस विद स्टैट्यूटरी एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट. करंट एंड पोटेंशियल हजार्ड कैन बी आइडेंटिफाइड. फॉर एग्जांपल कोविड-19 में अगर कोई चीज आ गई है तो अगर आपके पास फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम है तो वो भी इंक्लूड कर लिया गया है. रिड्यूसेस द नंबर ऑफ कस्टमर ऑडिट्स एंड सेव्स कॉस्ट एंड मैनेजमेंट. बहुत सारे कस्टमर, अगर आपने एक कॉमन कर दिया तो आप वालमार्ट को भी सप्लाई कर रहे हो, आप इनको भी सप्लाई कर रहे हो, 10, 20, 100 कस्टमर को कर रहे हो. एक ही सिस्टम से, ग्लोबल सिस्टम से सारा आपका ये हो जाता है. फूड बिजनेस में बेनिफिट्स कैसे हो रहा है? बेनिफिट्स द फूड बिजनेस. डिमॉन्स्ट्रेट योर ड्यू डिलिजेंस इन फूड सेफ्टी. ऑडिट कंडक्टेड इन कंसिस्टेंट सिस्टमैटिक मैनर. एनहांसेस फूड सेफ्टी ऑन योर साइट और अक्रॉस मल्टीपल साइट्स. फैसिलिटेट्स ग्लोबल स्टैंडर्ड. Competitive edge over your competitors. Enables employee to engage and develop a food safety mindset and culture. Reduces cost. Promotion tools. Encourages positive consumer feedback and comments. Adds credibility to your food and commitment to your food safety. Increases customer retention and drives continuous improvement. So these are the benefits when you are having implementation of quality and food safety system. These are the various certifications being used as this thing. जो हमने पहले भी देखा है farm to fork approach में. So ISO 9001, this is called as quality management system. ISO 22000, 2018 जो अभी आ गया है उसको बोलते हैं food safety management. ISO 14001, it is called as environment management system. ISO 45001, it is called as occupational health safety management. ISO 17025, laboratory management system. FSSC 22000, food safety standard certification. BAP, especially for aquaculture industry, best aquaculture practices. It is called GAA BAP, Global Aquaculture Alliance, best aquaculture practice. BRC, British Retail Consortium. IFS, International Featured Standard. SQF, Safe Quality Food. MSC, again especially for the aquaculture or seafood, Marine Stewardship Council. ASC, Aquaculture Stewardship Council. Global GAP, Global Good Agriculture Practices और Global Good Aquaculture Practices, दोनों जगहों पे है. फ्रेंड्स ऑफ सी से मरीन हार्वेस्ट से संबंधित चीजें हैं. HACCP, हजार्ड एनालिसिस क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट. GMP, Good Manufacturing Practices. FAMI-QS, feed additive and premixes quality management system. So these are the various certifications commonly and especially used by the aquaculture or seafood industry. Okay, so ये requirement. अभी हमारे लिए अवेलेबल अपॉर्चुनिटीज क्या है? एज स्टूडेंट्स एक्वाकल्चर इंडस्ट्री है, वेयर यू आर हैविंग हैचरी, नर्सरी, फार्म. अभी मैंने आपको बोला कि आई एम डीलिंग विद अ कंपनी इन बहरीन हु आर इनटू ऑर्गेनिक एक्वाकल्चर. सो एवरीथिंग इज देयर. सो ऑर्गेनिक एक्वाकल्चर, वहां पे भी आपके जैसे प्रोफेशनल्स की जरूरत है, तो जो कि हैचरी, नर्सरी, फार्म में काम कर सकते हैं. वहां पे भी R&D होता है, वहां पे भी काम कर सकते हैं. फीड सेक्टर, अगर आप देखोगे तो एक्वा फीड बनाया जा रहा है. बहुत सारे ब्रांड के फीड हैं, हमारे बहुत सारे सीनियर्स हैं जो फीड इंडस्ट्री में भी काम करते हैं, जहां पे फीड मैन्युफैक्चरिंग भी हो रही है एंड फीड मैन्युफैक्चरिंग से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेल्स हो रही है. वो इंपॉर्टेंट चीज है, वहां पे अपॉर्चुनिटी. प्रोसेसिंग, सी फूड प्रोसेसिंग फैक्ट्रीज, तो वहां पे बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं. स्पेशली आप जैसे प्रोफेशनल्स के लिए क्वालिटी कंट्रोल, प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट्स में काम आपके जैसे लोगों की जरूरत रहती है, काम कर सकते हैं. R&D, एक्वाकल्चर, फीड, प्रोसेसिंग, हर जगह R&D होता है. रिसर्च एंड डेवलपमेंट. सर्विस इंडस्ट्री, ऑडिटिंग, ट्रेनिंग, टेस्टिंग, कंसल्टिंग, ये है. एकेडमिक्स तो आप जानते हैं, एकेडमिक्स मेरे से ज्यादा अच्छा जानते हैं, तो ये है. बट ऑन टॉप ऑफ दैट इवन रेस्टोरेंट एंड ऑल दोस थिंग्स, वो भी आप सर्विस में डाल सकते हैं, जहां पे कंज्यूमर को एंड प्रोडक्ट दिया जा रहा है. बहुत सारे लोग आज अपने जो है रिटेल शॉप्स बना रहे हैं, रेस्टोरेंट्स बना रहे हैं फूड सेफ्टी के ऊपर. इसके अलावा अगर आप देखोगे तो
जो ये घर में फिश टैंक वगैरह रखते हैं, है ना, इस टाइप के भी हैं, बट आई एम नॉट गोइंग इनटू दैट, यू नो बेटर देन मी दैट। तो दीज आर द थिंग्स। अच्छा, कोई भी चीज अगर आप जाते हो तो व्हाट आर द थिंग्स फ्रॉम द स्टूडेंट यू आर गोइंग टू अ प्रोफेशनल, what people are going to see in you, why somebody want to use you. तो प्रोफेशनल अप्रोच, एंटरप्रेन्योरशिप और प्रोफेशनल अप्रोच होना चाहिए, उसमें कॉम्पिटेंस होनी चाहिए आपके पास। कॉम्पिटेंस किसी के लिए क्या होता है? एजुकेशन। तो एक जो ई लिखा है वो एजुकेशन है। एस इज फॉर स्किल, कुशलता, आपको काम करने की दक्षता, कुशलता। टी इज ट्रेनिंग, ई इज एक्सपीरियंस, एंड अगर जो रेड में ए और आर दिया हुआ है, दैट्स योर एटीट्यूड, योर पॉजिटिव एटीट्यूड, एंड आर इज रिजल्ट ओरिएंटेशन। एक एग्जांपल आप लीजिए कि एक डॉक्टर है, कोई आदमी बीमार हो गया और डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर रात में 12 बज गया है, डॉक्टर बोलता है कि मैं तो अटेंड नहीं कर सकता। अभी वो कॉम्पिटेंट है बट उसका एटीट्यूड और रिजल्ट में प्रॉब्लम, तो उस डॉक्टर की उस पेशेंट के लिए कोई वैल्यू नहीं रही जब उसने नहीं। एथिक्स बहुत जरूरी है कि हम एथिक्स में काम करें, एथिकल मैनर में काम करें, ये हर आदमी देखना चाहता है। हम बहुत सारे चैलेंजेस फेस करते हैं, बिकॉज व्हेन वी आर वर्किंग विद डिफरेंट एरिया, डिफरेंट कंट्रीज, डिफरेंट एरियाज, बहुत सारे चैलेंजेस हैं, यू कैन इमेजिन। है, हम अपने घर से बाहर निकलते हैं तो वी स्टार्ट फेसिंग चैलेंजेस, तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हैबिट्स, अगर हम अपनी हैबिट्स में लाएंगे कुछ चेंजेस, अभी हैबिट्स हमने बोला, कल्चर की भी बात हो जाती वो, एंड वी नीड टू शो आवर मैच्योरिटी व्हेन वी आर व्हाटएवर, एज एक साल है, नए हैं, जो भी हैं, हमारी मैच्योरिटी होनी चाहिए, एंड दैट्स हाउ पीपल आर लुकिंग फॉर प्रोफेशनल पीपल, है ना। एथिक्स में 2 एथिक्स, पर्सनालिटी एथिक्स एंड पब्लिक इमेज। पर्सनालिटी, अभी सियाराम तिवारी कैसे हैं, मेरी एथिक्स क्या है, इसके हिसाब से मेरी पब्लिक इमेज बन जाती है। अभी अजीत और हमने कभी साथ में पढ़ाई भी नहीं करी, हमने साथ में काम भी नहीं किया है, 2-4 बार मिले होंगे, बट ये आपको बता रहे हैं कि नहीं, ये देश विदेश में बहुत जानकार हैं, बहुत ये हैं, तो दैट इज माई एथिक्स एंड माई अबाउट मी, हाउ माई पब्लिक इमेज इज, ओके। और कैरेक्टर एथिक्स क्या है? इंटीग्रिटी, ह्यूमिलिटी, ऑथेंटिसिटी, करेज, जस्टिस, पेशेंस, मॉडेस्टी, सिंप्लिसिटी, दे आर आवर कैरेक्टरिस्टिक एथिक्स। और ये केवल आप जैसे को नहीं, ये सारे लोगों के लिए जरूरत है यार, जितने भी प्रोफेशनल है सबके लिए जरूरत। क्या चैलेंजेस फेस करते हैं लोग? फियर एंड इनसिक्योरिटी, अरे यार मुझे डर लग रहा है, मुझे निकाल नहीं देंगे, मुझे काम से कर देंगे। तो आप अपना काम जानते हो तो आपको कोई नहीं निकाल सकता कहीं। आप, कुछ लोग होते हैं मुझे बहुत जल्दी चाहिए, आज चाहिए मुझे। आप, मैंने जो है 24-25 साल में जो अचीव किया है, इफ somebody, my son wants that I should achieve it in 1 day, he cannot, 1 year he cannot, it is having its own time. दूसरा एक है ब्लेम और विक्टिमाइजेशन, यार मैंने ये गड़बड़ नहीं किया, इन्होंने किया है, उन्होंने किया, ऐसा नहीं। सो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, जो ब्लेम, जो चैलेंजेस होता है, नए लोगों के ऊपर लोग ज्यादा डाल देते हैं। होपलेसनेस, अरे कहीं पे प्रॉब्लम हो गया यार तो कुछ नहीं होना है, इनका कुछ नहीं होना है, ऐसा नहीं, तो दैट इज अनदर प्रॉब्लम। लैक ऑफ लाइफ बैलेंस, वर्क लाइफ बैलेंस बेसिक, कभी कभार हम अपने काम में इतना मस्त हो जाते हैं कि हमें अपनी लाइफ की, वर्क लाइफ की पता नहीं है। That can have our family life problem, our health problem, this, that, and all. So you have to have the balance. What's in it for me? अगर हम कोई काम करने जा रहे हैं तो मेरे लिए क्या है? I don't know whether it is right or wrong, but important. अब जैसे आज अजीत जी ने मुझे बोला कि हमें ये काम करना है, आपको लेक्चर देना है। If I should have thought that ये मेरा 2 घंटा वेस्ट होना है, what is in it for me? It is not. So you have to have the larger heart and larger thing, then only you are going to. So you have to see what's it in it for us, not me. ऐसा देखना पड़ेगा। हंगर टू बी अंडरस्टूड, लोग सोचते हैं यार मेरी बात कोई सुन नहीं रहा है, आपकी बात सुनना इंपॉर्टेंट नहीं है, लोग आपको समझे, दूसरों को आप समझे, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप दूसरों को समझना शुरू करते हैं तो पीपल आर गोइंग टू अंडरस्टैंड यू आल्सो। कॉन्फ्लिक्ट्स एंड डिफरेंसेस, हमारा हर घर में, हस्बैंड वाइफ में, बाप बेटे में, हर पीढ़ी में कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स और डिफरेंसेस होते हैं, हर आदमी में होता है, भाई बहन में होता है। सो ऑल दोस थिंग्स विल बी देयर, वी हैव टू टेक इट नॉर्मल व्हेन वी आर गोइंग प्रोफेशनल वे आल्सो। एंड पर्सनल स्टैग्नेशन, फॉर एग्जांपल व्हेन आई स्टार्टेड माय कैरियर, आई स्टार्टेड इन a company which is Amalgam Enterprise.
वहां पर जो है सब लोग मलयाली काम करते थे, मैं अकेला जो है नॉन मलयाली था। अभी मैं सोचूं यार मेरे से कोई बात नहीं करना है तो मैं कैसे करूं? मैंने क्या किया, अलग होने के बजाय मैंने उन लोगों के साथ में बात करना शुरू किया, कुछ लैंग्वेज उनकी सीख ली, कुछ उनके साथ में। तो यू कांट गो इनटू हाइबरनेशन, यू कांट गो इनटू स्टैग्नेशन। तो ये एक प्रॉब्लम होता है। ठीक है, हैबिट्स, what are our habits? Our character is collection of habits. Okay, that's very very important. Habit consist of knowledge, know-how and desire. What is knowledge? Knowledge allows us to know what to do. Know-how gives us the ability how to do it, and desire, motivation in the action. So this is all important. And एक प्रोफेशनल के लिए क्या है 7 good habits? They are be proactive, not reactive. Be proactive. Begin with end in the mind कि मुझे क्या करना है लास्ट में, what I am going to achieve after 1 year, after 2 years, after 3 years, और जो भी आप चाहें, that should be the case. ऐसा नहीं कि चलता है जो मिल जाएगा ठीक है, ऐसा नहीं। Put first things first. क्या पहले करना है, प्रायोरिटाइज जिसको बोलते हैं वो करना है। Think win-win है, आज आपको win-win सोचना है, ऐसा नहीं कि यार मेरा क्या भला है, सबका क्या भला है वो सोचना है। That is important. Seek first to understand, then to be understand. पहले दूसरों की समझो, दूसरों को सुनो और then अपनी बात को समझाओ, then people will understand. Synergize मतलब एज ए टीम वर्क, आप जेल हो जाइए, जैसे दूध में चीनी जेल हो जाती है, मिक्स हो जाती है, ऐसे synergize. Sharpen the saw. आपका जो नॉलेज है वो आपको हमेशा बढ़ाते रहना है। मैं 25 साल का एक्सपीरियंस ले लूं, डॉक्टर उपाध्याय जिन्होंने कल डिलीवर किया उनके पास 40 साल का एक्सपीरियंस होगा, बट एवरी डे वी हैव टू शार्पन आवर स्किल। हमारे जो आरी को धार बनाना है, चाकू में धार बनाना है, तभी वो काटेगी कोई चीज ना। तो ऐसे ही हमारी नॉलेज में जो है हमेशा ये होना चाहिए। मैच्योरिटी परफॉर्मेंस, इंपल्सिव का मतलब क्या है, जो हो रहा है होने दो यार, व्हाट एवर हैपेंस होने दो, ऐसा नहीं, वो नहीं चलता है। चलता है एटीट्यूड नहीं। डिपेंडेंट, आई फॉलो द रूल्स एंड डू व्हाट आई एम टोल्ड। मुझे जो बताया गया है मैं वही कर रहा हूं, वो अगर करोगे वो भी सही है नहीं सही है उसके ऊपर जाते हैं, कहीं पे वो सही होता है कहीं पे नहीं होता है। इंडिपेंडेंट, आई एम हाई परफॉर्मेंस, मुझे कोई मतलब नहीं, मैं इंडिपेंडेंटली काम कर सकता हूँ, अरे दूसरा नहीं करता है मैं ही करता हूँ, ऐसा नहीं। बट व्हाट इज द बेस्ट? इंटरडिपेंडेंट, वी आर ट्रूली सक्सेसफुल टुगेदर। जब हम काम साथ में करते हैं तो हमें इंटरडिपेंडेंट होना पड़ता है। ये सारे इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिसको हमें समझना है। तो ये था मेरा लेक्चर। मुझे लगता है कि हमने 3-4 मिनट पहले ही कंप्लीट कर लिया है। अजीत जी, यस सर, 10 मिनट का आपने टाइम दिया है, तो कोई प्रश्न है जो हम लोग बात करें? अदरवाइज आई हैव समथिंग टू आल्सो फर्दर टॉक। Sir, I just asked the student if they have any question or any query. इन्होंने कुछ चैट में भेजा है, जरा देखिए। Basically, we have shared some link to give feedback about this. So there is a link basically. No problem. तो आप जो है इन लोगों से पूछ लीजिए, क्वेश्चन असेंबल कर लीजिए और हम लोग बाद में भी कर लेंगे, है ना? हाँ, sure, sir. Dear students, if you have any query, any question, any doubt, you can ask. Now the forum is open for discussion. Students, please respond. Hello. Sir, Dr. Reddy has a question. Yes. Please go ahead. Please unmute, sir. Yeah. Sir, thank you so much for the elaborated presentation, sir. And I just wanted to ask, like, if a professional, any professional, like whether he may be from fisheries or maybe from a food technologist, and if he wants to become an auditor, quality inspector or auditor, so what should be the prior thing that he has to go through? Like, any basic courses are there to undertake, or what is the first step he has to go through? Okay, great. First thing, they have to have a food safety education, graduation in food safety. तो आपका फिशरी, वेटनरी, एग्रीकल्चर, इवन फॉरेस्ट्री, जो भी फूड से संबंधित है, फूड प्रोसेसिंग, फूड टेक्नोलॉजिस्ट, सारी जो है डिग्री जो है ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है, 4 साल की डिग्री होनी चाहिए। उसके साथ में उनके पास कम से कम 5 साल का किसी भी फूड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में, फूड एस्टेब्लिशमेंट में क्वालिटी या प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में काम
Okay, thank you, sir, for your vibrant, elaborative, knowledgeable, and it meets with your company name in depth. And thank you, sir, once again. And really, your presentation has enlightened our knowledge. I'm graded, and definitely student will be benefited from your lecture. And I also want to thank our worthy Vice Chancellor, Dr. Indrajit Singh, and Dean College of Veterinary Sciences, Dean College of Fisheries, for their consistent support, and particularly the financial approval, because without finance, it is difficult to organize anything. Along with this, I also want to thank my colleague, Dr. Vijay Reddy, and Ms. Amandeep Kaur. And moreover, I want to say my sincere thanks to my dear student who really joined who joined this webinar, and hopefully it will be definitely beneficial for them. And I also want to thanks to all those persons who directly or indirectly helped us, and thank you all. And dear students, on next Tuesday we will have another expert with us. So again, we will meet on next Thursday. Thank you, sir. And thank you very much. Thank you. Thank you once again, sir. Now, thank you. I'm leaving the program. Right? Yes. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir.